the man, the myth, the legend, श्लोक सोनी। मेरे को तो एंड्रू भाई नेचुरल नहीं लगते। बट आपने कभी सोचा है ऐसा लेने का? एक लड़का है 16 साल का है, लोग को क्या हो गया है ऐसे क्यों? इसका प्रोग्राम खरीद लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। पतले पतले होके एकदम घूम रहे। बट आई बी लाइक यार व्हाट अ फिजिक। मैं देखूंगा एंड्रू भाई क्या आर्म्स है यार। सच में नैटी हो भाई, वो वाला नैटी नहीं हो जो नैटी लिखते और होते नहीं है। दिस हैपेंड ड्यूरिंग फ्लेक्स फेस्ट। Everybody is an actor. मुझे तो भाई इतना खबर है ना मैं शू करूँ जो। Not today, but I'll let you know tomorrow. रिवर फ्रंट पे आप बोलोगे नहीं श्लोक भाई फुल चड्डी में अभी अपने को पोजिंग करना पड़ेगा। मतलब इतना लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं अरे तुझे लगता है हाँ ठीक है तूने बिजनेस कर लिया है, क्या बात नहीं पता आपको। वाओ what will you be doing in that case scenario? क्या करोगे? क्योंकि सिल्वर स्पून तो होगा ही होगा। मैं शुरू से शुरू करता हूँ आपको सब। What's been your biggest internal battle कोई और ऑप्शन ही नहीं था। being a natural athlete? तब भी मुझे काइंड ऑफ रियलाइज हुआ कि ओके ये मेरा ऑब्सेशन नहीं है शायद। Hey Flex Tribe, welcome to the Awesome Podcast. This is where we speak truth, no lies, no filters, and only real talk with real people. Today we have a special guest, Slok Soni. He's an athlete, a coach, and one of the most hardworking person you will ever meet. Want to know what makes him different? Let's dive into the podcast and hear his story. Hi guys, welcome back to the Awesome Podcast. I am Andrew Leo, the founder and CEO of Athflex, and today we have none other than Slok Soni on the Awesome Podcast. Hi Slok, how are you? Hi Andrew, I'm good. How are you? So good to be here. Welcome to the Awesome Podcast. We are doing this after like a year. Yeah. बहुत लंबा गैप हो गया, but I'm so happy to have you. You know, I'm happy to be here. Honestly, मैंने जब पहली बार Awesome Podcast देखा था YouTube पे, I was almost a nobody. I still am a nobody, I think. पर मैंने सोचा था कि यार यहाँ पे जाना है एक बार. And it's really, you know, an honor to be here with you right now. Thank you so much, but I think we have been a bit inconsistent with the podcasting. We were like in a lot of other things, building a lot of things. Yeah. But we knew कि हमको वापस यहीं आना है. The Awesome Podcast जो IP हम लोग create कर रहे हैं with Athflex. I think we had to come back to this, and today we have you also on the podcast. Thank you so So much. I think it's a great start for us. Maybe I can be, you know, throw some influence on you now. Why, you are an influencer, so of course you have to throw some influence here. So, not taking too much time. So, basically, we have divided this podcast into 8 segments. Okay, and we'll have 3 to 4 questions in every segment, and then last we ending it with the rapid fire round. Oh my God. This is how it is going to be. Yeah. As I would just want to tell you guys that this is like a very impromptu. Slok doesn't have any idea about what questions these are. रैपिड फायर में क्या आएगा कुछ भी नहीं पता, एकदम रॉ रियल स्टफ. मुझे लास्ट टाइम ऐसा स्कूल के एग्जाम में फील हुआ था guys, तो अब समझ सकते हो क्या सोच रहा हूँ मैं अभी. वैसे ही होना चाहिए स्कूल के एग्जाम में, जैसे अपने बैठते हैं. वैसे मेरा भी वही हाल था कि कुछ पढ़ के नहीं आता था, देखते लिखेंगे, कहानी लिखने लगते, इम्प्रॉम्प्टू लिखते हैं. वही वाला सीन आज आपको कर रहा है ऑन द ऑसम पॉडकास्ट. ओके, सो द फर्स्ट सेगमेंट वी हैव नेम्ड इट एज द जर्नी एंड डिसिप्लिन. वाओ. ठीक है. एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर यू इज लाइक एवरीबडी हैज अ स्टार्ट, बट व्हेन डिड यू रियलाइज दैट दिस इजंट अ फेज दैट हु यू आर? फॉर एग्जांपल कि सबका कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है. इन आपको कब लगा कि दिस इज योर कॉलिंग, लाइक फिटनेस और व्हाटएवर यू आर डूइंग एट द मोमेंट, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और लाइक अ कैटेगरी और अ नीश इन्फ्लुएंसर दैट यू आर? तो आपको कब लगा कि आप ये बनने वाले हो? मैं शुरू से शुरू करता हूँ आपको समझ. I think we should start from the beginning of who Slok Soni is, how he started, and what he is doing today, and what you want to do in the market. Like, what are you trying to provide the value, or what you're trying to build in the public is what the question is. देखो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि इनिशियल लेवल पे भी ऑल सो भुवन बाम, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे यूट्यूब पे. और when they started getting famous, I was, I think, 16-17 years old. और उस वक्त मुझे बनना था टेनिस प्लेयर बनना था. मैं प्रोफेशनली खेलता भी था नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनली जूनियर्स भी खेला हूँ. पर मैं जब तक 20 साल का हुआ मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई ये स्पोर्ट कंटिन्यू करने के लिए लगेंगे पैसे.
और इससे उतना रिटर्न आ नहीं रहा है। एंड एज अ गाय यू ऑलवेज रियलाइज वंस यू क्रॉस 20 एज वाला वो बैरियर कि आपको लगता है यार कि मैं मेरे घर से कितने टाइम पैसे मांगू, वो हिट होता है, पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं पागल हूँ क्या कि मैं 20-21 साल का हो गया अपने घर वालों से पैसे मांग रहा हूँ वो स्पोर्ट खेलने के लिए। तो मुझे बहुत जल्दी आई एम ग्लैड मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई दिस स्पोर्ट इज़ नॉट फॉर मी। उसके बाद एक स्टेज आया फिगरिंग आउट वाला कि अब क्या करना है। तब बैठे थे अपने वेल्ले तब मैंने YouTube देखना शुरू किया। मुझे लगा कि भाई चलो ये सही है कि वीडियोस बनाते हैं। मैं ऑलरेडी काइंड ऑफ क्रिएटिव था, मुझे पोएम्स लिखना, सॉन्ग्स लिखना, स्केच करना वो सब बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। पर इनिशियली क्या होता है ना, हर किसी का एज ए क्रिएटर एक फेज होता है कि वो लोगों को शुरू में कॉपी करते हैं, बिकॉज द आंसर बिहाइंड दैट इज यू डोंट नो हु यू आर राइट नाउ, राइट। तो मैंने इन सब लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया, अलग अलग ऐसे मतलब स्केचेस खुद के थोड़े मिक्स करके अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू किया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार उस वक्त मेरा माइंडसेट ऐसा था कि व्यूज़ के लिए क्या, अरे इतने व्यू आ जाए, ये नंबर हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं चल रहा था साथ में। फिर 1 साल निकल गया ये करते करते, घर से थोड़े बहुत छोटे मोटे ताने पड़ने लगे, पर उनको काइंड ऑफ भरोसा था कि यार ये कुछ तो उखाड़ लेगा लाइफ में वही। अब उसके बाद हुआ कैसा, मुझे खाने का भी शौक था बहुत ज़्यादा। अब टेनिस की वजह से मेरी फिटनेस जर्नी ऐसे कांस्टेंट थी कि टेनिस छोटा, उसके बाद भी जिम विम जाना मेरा रेगुलर रहता था, पर उतना कुछ हार्डकोर नहीं था कि भाई फिजिक बनानी है, क्या होता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कौन होता है, कुछ नहीं पता था। और इंडिया में उस टाइम ऐसा कुछ ट्रेंड था भी नहीं, 2018, 17, 19 में ऐसा कुछ। तब एक बार रैंडमली मेरे मॉम ने घर पे पिज़्ज़ा बनाए और मुझे कमाने थे पैसे। तो मैंने मम्मी को बोला कि इसको कन्वर्ट करते हैं अपने क्लाउड किचन में, कि आप पिज़्ज़ा बनाओ, मैं बेचूंगा, मैं मार्केट करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया समझ में आता था उस वक्त, तो जितना हो सकेंगे करेंगे। तो यू वोंट बिलीव, मैं 3 साल तक पास्ता पिज़्ज़ा शेफ था और मैं लोगों को पिज़्ज़ास डिलीवर करता था। अच्छा। हाँ, टिल आई वॉज 23-ish, तब तक ये मैंने उतना खींचा। कोविड के बाद वाले ईयर, आई थिंक ड्यूरिंग कोविड 2022 और 2023, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, कोई एक नवंबर था जब हमने वो किचन क्लोज कर दिया था, क्योंकि सून आई रियलाइज ऑब्वियसली मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। पर मुझे उस ड्यूरेशन में कंटेंट भी क्रिएट करता था, मैं मेरे क्लाउड किचन के लिए भी कंटेंट क्रिएट करता था, ओके, और मैं लोगों से भी मिलता था। गॉट इट। तो वहाँ पे वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, क्योंकि व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ, राइट। या क्या फील होता है अपने को, सबसे खराब चीज लाइफ में क्या होगी? वन ऑफ इट इज आई थिंक एम्बैरेसमेंट, Right. पब्लिक ह्यूमिलिएशन। Yes. ठीक है, नाउ यू इमेजिन यू आर अ 22-year-old गाय गोइंग डोर टू डोर एंड सेलिंग पिज्जास, एंड इट्स नॉट लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम अ वीक बैकग्राउंड, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो आप, तो दैट बिल्ड्स योर कैरेक्टर। दैट्स राइट, 100%। तो वहाँ पे मेरा लोगों से बात करना होता था, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कैमरा के सामने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गया, बोलना कि भाई और किचन इज ओपन राइट नाउ, कम ऑर्डर, ये वो फलाना टिकड़ा जो होता है अपना कैजुअल वो सब। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त काम करना आता था पर पैसे बचाना नहीं आता था। दैट वाज माय लर्निंग। नाउ इमेजिन कि आप 22 साल के हो, आपके हाथ में महीने के आने लगे 50-60 हज़ार रुपये, अब क्या करोगे? तो मेरा माइंडसेट ये था, पैसे आ रहे उड़ाओ। हाँ, और शुरुआत में स्टार्टिंग में एग्जैक्टली भाई। तो मैं वो वहाँ से सीखा कि भाई फाइनेंस क्या होता है, कैसे अलग अलग चीज़ें काम करती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे ही गलत डिसीजंस की वजह से, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से वो चीज़ बंद करनी पड़ी। गॉड। वो 23 या 22 वाले नवंबर में हमने ख़त्म की। उसके बाद में फिर से हो गया वेला, अब काम पता नहीं क्या करना है, और कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, चालू है। लेकिन तभी आप क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे थे? मैं कॉपी करता था लोगों को। हाँ, लेकिन ऐसा बोलने वाला कंटेंट नहीं था ना? बोलने वाला यूट्यूब पे था। यूट्यूब कर रहे थे कि मेरा वो कैमरा जो होता है ना, एक फियर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो वहाँ से हट चुका था ऑलरेडी। फियर ऑफ जजमेंट जो बोलते हैं ना अपने, कि कैमरा के सामने अगर मैं एक लड़की प्ले कर सकता हूँ तो मुझे क्या ही डर होगा कैमरा के सामने। अब तो मैं लोगों को कॉपी करता था। भुवन बाम का कंटेंट अगर आपने देखा हो, वो कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता है, वो ऐसा सब कंटेंट किया, वो सब करता था मैं। उसके बाद मैं व्लॉग्स बनाता था, अलग अलग हरकतें। आई हैव लेट माय फीमेल फ्रेंड्स पुट मेकअप ऑन मी। मेरे इतने लंबे बाल थे पहले, मैं चोटी करने देता था उन लोगों को, क्योंकि मुझे कंटेंट वैसा बनाना, व्यूज मिलने के, व्यूज के लिए। ठीक है, ये वाला साइड तो हमने किसी कभी देखा ही नहीं है श्लोक सोने का यार। एक कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? मैंने जैसे ही कर दिया क्या सब? जैसे ही इंस्टाग्राम पे अभी लास्ट ईयर वो 10K वाला मार्क हिट हुआ ना, मुझे लगा जनता सर्च करे, उससे पहले सब डिलीट करो फटाफट।
प्रॉब्लम हो जाता है यार, लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी अलग है एकदम, ये क्या हो गया अचानक इसको। अब इसमें बीच में एक सेगमेंट ऐसा था कि मैं किसी को मेजोरिटी पता नहीं, पर मैं कॉलेज गया ही नहीं। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कॉलेज ड्रॉप ले लिया क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे एजुकेशन चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर वो जो कंसेप्ट ऑफ स्कूलिंग सिस्टम अपने पूरे कंट्री में है ना, मैं उसके थोड़ा खिलाफ हूँ। Same. I think even I dropped off in the second year by the way. Like, it doesn't make sense कि if you are self-taught, if you want to learn, you will learn anyhow. Exactly. तो वो तो छोड़ दिया था मैं पढ़ता रहता था, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी, बिजनेस बुक्स पढ़ी, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, जो मेरा काइंड ऑफ, अगर अभी करंट मेरा कंटेंट देखोगे, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई लर्नड इन दोज ईयर्स। तो किचन बंद हो गया, वेले पड़े हैं अपने, तब मैंने सोचा अब क्या करें, पैसे कमाने। तो मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया मिड 2023 में कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 इफ़ आई एम नॉट मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, आई विल जॉइन माई फादर्स एंड बड़े पापा का बिजनेस जो भी है अभी, उसमें घुस जाएंगे अपने। और मुझे लगा कि क्या आता है मुझे, तो मुझे लगा ओके मैं एक एथलीट हूँ और मुझे ट्रेनिंग समझ आती है, मुझे उसका साइंस समझ आता है, तो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। तो मैंने अगस्त में अपने आप को एक टारगेट दिया कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर अगर मेरे पास 4 क्लाइंट नहीं होंगे तो मैं सब छोड़ छाड़ के पापा की दुकान पे बैठने लगूंगा। और लकीली बिकॉज ऑफ माई विल पावर 4 के 5 क्लाइंट हो गए दिसंबर 2023 तक। मैं तब तक फिर भी कंटेंट बना रहा हूँ एंड टिल दिस टाइम मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाने लगा हूँ, बट आई वॉज कॉपिंग यज्ञेश को अपना मिले अभी फ्लेक्स फेस्ट में, आई यूज टू कॉपी हिम। अच्छा, पूरा वैसा कि अपने जिम की कोई क्लिप है और पीछे कुछ फनी लगा दिया या कुछ ऐसा बना दिया। ईशानी संघवी को कॉपी करता था मैं, ये सब होता था, इवन नॉट रियलाइजिंग एट दैट टाइम कि आई हैव टू बी माई सेल्फ। absolutely. So it takes a lot of failures to understand what actually is the best for us. Exactly. फिर दिसंबर आ गया, 5 क्लाइंट हो गए, मैं सुबह 4 बजे मेरा पहला सेशन होता था, मैं जहाँ पे किसी को ट्रेन करने जाता था, वो 4 से 10 बजे तक चलता था पूरा मेरा, और उसके बाद मैं खुद जिम जाता था, ट्रेन करता था, कंटेंट शूट करता था, घर आता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, जनवरी फेब आया, मुझे लगा यार टिपिंग पॉइंट ब्रो के व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। वही दिसंबर को आपका टारगेट था, फरवरी तक आपको ऐसा लगने लगा कि व्हाट आर वी डूइंग, ऐसा वाला। एग्जैक्टली कि ट्रेनिंग ठीक है, पर इससे जो लाइफ यू वांट वो नहीं बनने वाली है। मुझे लगा कि कंटेंट क्रिएशन में अगर इतना ज़्यादा वो है और तेरे में इतना दिमाग है कि ऑल दीज ईयर्स यू बीन ट्राइंग टू क्रैक इट, तो कुछ सोच ज़्यादा। फिर मुझे एक पॉइंट रियलाइज हुआ कि यू हैव टू बी ऑथेंटिक। एग्जैक्टली, कि यू हैव टू बी हु यू आर इन ऑर्डर टू सक्सीड। कि अपने क्या करते हैं कि किसी और का पाथ कॉपी करने का अटेम्प्ट करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि भाई आई कैन कार्व माई ओन पाथ, जस्ट आई हैव टू बी माई सेल्फ। शायद मुझे उसकी ऑडियंस नहीं मिलेगी, पर मुझे वो मिल जाएंगे लोग जो आपके ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस है, जिनको ज़रूरत होगी। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इन ऑर्डर टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, ये थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग था मेरा कि क्या चीज़ें चलती है। तो मैंने देखा कि एक होता है एंटरटेनमेंट, एक होता है ब्रेन रॉट टोटल, और दूसरा होता है वैल्यू। मुझे लगा कि मेरे पास वैल्यू प्रोवाइड करने को तो बहुत है, इतना कुछ पढ़ा है कि वो मैं बांटूंगा नहीं तो क्या होगा। और मेरे को ऐसे ही ज्ञान पेलना बहुत अच्छा लगता है किसी को भी कभी भी कहीं भी कुछ भी एडवाइस दे देता मैं। मुझे लगा कि ये चीज़ अपने डालना शुरू करते हैं, कोई तो देखेगा, किसी को तो हेल्प हो जाएगी। तो मेरा एक ही माइंडसेट था उस वक्त कि कोई वीडियो देख रहा है मेरा, तो देयर हैज़ टू बी अ टेक अवे फ्रॉम इट, नथिंग एल्स। कुछ कोई सीख के जा रहा है तो बहुत होगा मेरे लिए। और मैंने इनिशियली वो चीज़ शुरू की फेब में। मैंने सोचा कि इस चीज़ को 60 डेज तक कंटिन्यू करते हैं, जो अगर लोगों को आइडिया होगा कि जो सीरीज़ चल रही है अभी मेरी डे 428, 429 समथिंग, इतने दिनों से कंसेक्यूटिव आपने देखा है कि आई हैव बीन पोस्टिंग 1 रील एवरी डे। यस, तो वो ओरिजिनली था सिर्फ डे 60 तक। मैंने सोचा कि 60 डेज तक कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कुछ होना होगा तो हो जाएगा। बाद में अपने लोगों को ट्रेन तो कर ही रहे हैं, विल चेंज, विल डू समथिंग एल्स, बट एटलीस्ट जस्ट बी योर सेल्फ फॉर 60 डेज ऑन सोशल मीडिया। कोई जजमेंट का फियर नहीं, कुछ नहीं, डाल बस, चुपचाप डाल। डे 60 तक डाला, कुछ नहीं हुआ इंस्टाग्राम पे, पर मेरे को मजा आने लगा था। ये मजा आने लगा कि यू स्टार्टेड लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग। जबरदस्ती कुछ नहीं थी, बहुत मजा आने लगा मुझे कि यार ऐसे वीडियो लेना है मुझे, ये मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये बोलना है, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो इसकी ये बात बहुत ही क्रेजी लगी, ये शेयर कर देते हैं। तो अब हुआ क्या, डे 61 आया एंड यू वोंट बिलीव डे 61 वाज द वर्स्ट रील ऑफ माइन। इतनी घटिया रील, कुछ टेक अवे नहीं है वो रील में से। अभी भी आप जाके देखोगे ना, सिर्फ मैं हूँ, मेरा दोस्त है, उसके पास मर्सिडीज है एक, वो कन्वर्टेबल उसके पापा की, वो लेके हम दोनों घूम रहे हैं,
कैफे में जाके कॉफी पी, रात को पिकल बॉल खेल रहे, देयर इज नो टेक अवे फ्रॉम इट। मैंने वो अपलोड किया रात को 9 बजे, डे 61। मैं नहीं डालने वाला था सबसे पहले तो वो रील। फिर मैं नेक्स्ट डे सुबह उठा, मैंने देखा इतने सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, क्या है? मैंने देखा माय फॉलोइंग जंप्ड टू 4000 फ्रॉम 1200। उसके बाद वो धीरे धीरे वो बढ़ते विद इन अ वीक आई वाज ऑन 10K। Wow. Because of that one stupid reel. One stupid reel, but you don't know like what exactly works. What exactly works, you never know. लोगों को जो अच्छा लगता है। आप एल्गोरिदम समझते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड, यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एल्गोरिदम, राइट? पर लोगों को लगता है कि एल्गोरिदम साइंस है, डेटा है कुछ, पर वो डेटा कौन बनाता है इन दी एंड? इट्स पीपल। Exactly. इट्स पीपल। Exactly. It's people. Nothing as algorithm. ये वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भाई। इंसान मतलब किसी को पसंद आता है वो शेयर करता है जितना, और जो रिलेटेबल लगता है वो ज्यादा चलता है। एग्जैक्टली, रिलेटेबिलिटी। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये रील रिलेटेबल लगी लोगों को। सो फ्रॉम डे 61 टू डे 90 मैंने वैसा ही कंटेंट बनाया, बकवास, जस्ट माई ऑब्जर्वेशंस अबाउट द सिटी, नथिंग एल्स। उसके बाद वो चीज चलने लगी। फिर उसी पॉइंट में मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज नॉट मी, दिस इज समथिंग, दिस इज अगेन नॉट यू। या दिस इज नॉट मी, दिस इज जस्ट मी डूइंग समथिंग टू अगेन वापस सेम लूप में चले गए कि मैं सेम लूप में चला गया। ये चल रहा है इसलिए मैं बना कर रहा हूं। अगेन ओरिजिनलिटी वापस बैक टू एग्जैक्टली। फिर मुझे लगा कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं थोड़ी ऑडियंस लूज कर दूंगा, बट जस्ट बी हू यू आर। फिर वो होते होते वो मैंने वैसा कंटेंट बनाना छोड़ दिया। फिर तब से वही चीज कंटिन्यू चल रही है, जस्ट प्रोवाइड सम वैल्यू। कोई किसी को कुछ सिखाओ, कोई कुछ सीख के जा रहा है, दैट इज माय एंड गोल। या विथ यू क्रिएटिंग कंटेंट, या दैट इज माय एंड गोल। और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बहुत लंबा गेम खेलने वाला हूँ, 10 15 20 साल 40 50 हो जाऊंगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ, मैं यही चीज करूंगा। आई जस्ट वांट टू लीव अ लेगेसी एंड वांट पीपल टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी। मैं किसी एक आदमी की भी लाइफ बेटर कर दूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा वो। दैट्स अ ग्रेट माइंडसेट श्लोक यार। मतलब ऐसा माइंडसेट, to find a mindset like this is like very rare. Again, I think a lot of thing comes, ये mindset आने के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सवाल है कि training, gym helped a lot even right now, no, मुझे ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता। काफी दिन ऐसे होते हैं, you also know that you don't feel like training, but I do it for my mental health. सही बात है। मैं जाऊंगा वो जगह पे, मैं मेरा प्री पीऊंगा और मैं एंजॉय करूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग सेन रहता है ये चीज करने से। Absolutely, I totally relate to the same thing कि भाई कि वो चीज वो नेक्स्ट लेवल है कि like if I don't train, like कभी कभार ट्रेन नहीं भी कर पाता हूँ तो ऐसा उस दिन वो मन दुख बैठता है कि यार ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा यार, वो एड्रेनलिन नहीं मिल रहा, वो फील नहीं मिल रहा है। और मैं माइंडसेट का आपको एक एग्जांपल दूं ना, इट स्टार्टेड बिल्डिंग फ्रॉम द years when I used to play tennis. Got it. क्योंकि स्पोर्ट्समैन वाला जो है बहुत ज्यादा होता है, एंड टेनिस इज अ वेरी इंडिविजुअल स्पोर्ट, इंडिविजुअल एंड इंटेंस स्पोर्ट एट द सेम टाइम। पूरा आप पे डिपेंडेंट है, ना कोई टीम है, ना कोई कोच है आसपास आपको बोलने वाला। एंड आई हैव फेल्ड सो मच प्लेइंग टेनिस, इतना हारा हूँ कि मुझे एक पॉइंट पे एक ही ऑप्शन बचा था, दैट यू हैव टू गेट बेटर, तो ही जीतोगे। आई एम लूजिंग अ मैच एट 12 o'clock इन द आफ्टरनून, मैं 3 बजे वापस ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे फिटनेस कर रहा हूँ, 8 बजे खत्म हो रहा है, घर जा रहा हूँ, वही लूप कंटिन्यू होता था। तो मेरे दिमाग में एक चीज होती कि भाई यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ, नॉट गिविंग अप वाला जो माइंडसेट है वहीं से है पूरा। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल द वंस हु सक्सीड और लाइक मेक इट बिग इवन इन फिटनेस और एनीथिंग इन लाइफ, आई थिंक कम्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, इज लाइक इवन इफ यू फेल, you just have to keep on going, get better and not give up. Exactly. And just keep on going. Yeah, क्योंकि at one point ना बहुत ऐसा होता है कि people don't realize that is the only option they have left now. Exactly. Is to keep trying to succeed. और वो बहुत लोगों को realize नहीं होता. And that is why they give up. But in order to reach where you want to be, that is the only option you have. Not give up. Not give up and just keep going. Yeah. And take all the failures as a lesson or a learning. Do your homework again and again, try again. Exactly. Try again. Exactly. Yeah. Do people know your age? People, yeah, might be. I don't know. Like, how old are you? यार अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ भाई, अब मेरे को नहीं बोलना भाई, मेरे को अब एज। अच्छा, if you want to keep it a secret. नहीं, it's 27, like I am 27. See, that's crazy. अपने दोनों को लगता है nobody knows I am also 27. I'll turn 27 this year. अब लग रहा है मैं बुढ़ा नहीं हूँ। Okay. अब मुझे लग रहा है कि 2 बुढ़े बैठे हैं क्योंकि मैं भी वही सोचता हूँ। फिर I look at every other पर्सन और मुझे लगता है कि यार मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को किसी 50 साल के आदमी के साथ जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। Absolutely, like I don't compare,
बट आई फील कि अब कि यार मैं उम्र बढ़ रही है. लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक अ फ्लेक्स, लाइक रनिंग अ बिजनेस एट 21, 22, ऐसा बोलने में अच्छा लगा. अब 27 साल में तो कोई कुछ भी कर रहा है भाई, वैसा वाला वो. एक इंस्टाग्राम पे कोई क्रिएटर है, इज 24 25 years old फ्रॉम दिल्ली. ही यू नो मेक्स, आई थिंक हिज कंपनीज रेवेन्यू इज 500-400 CR a year. तो मुझे लगता है ये क्या ऐसा कर रहा है जो इतना कमा रहा है अभी कि मुझे भी करना है ये. But I think a lot of things that we see on Instagram are fake, yaar. I think like heavily fake, heavily influencing. But like 95% of the people don't understand that and they believe that कि actual that is the real. मैं वही कहने वाला था, पता है. इसके बाद फिर मुझे रियलाइज होता है कि मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, कि क्या पता ये नाटक कर रहा हो सिर्फ. यू नेवर नो. Everybody has a different. Everybody. I read a book from Robert Greene. मैं Robert Greene के books पढ़ता हूँ. There is a book called The 48 Power of Laws. ठीक है, halfway में गया हूँ, लेकिन उसमें बोलता है that the guy says कि everybody is an actor. You, me, everybody around. Everybody is an actor. Yeah. Have you seen Batman? Batman. The latest one. Matt Reeves. I'm not a. उसमें एक डायलॉग है, We all wear masks. Exactly. Everybody is an actor. Everybody is wearing a mask. Like according to the situation. You put on that mask and you act. So even on a podcast, we are acting, bro. Like we are. अरे नहीं. But it's called the Awesome Podcast, so we are not acting, to be very frank. Like. Yeah. Very chill, right? ठीक है. So yeah, we were at the tennis thing and we talked about never giving up content. लेकिन ये content वाला scenario, like how long have you been doing? Like tell me, like when did you start? 2018. 2018. अगर वो मैं मेरा फालतू वाला कंटेंट भी गिनो ना जिसमें मैं लोगों को कॉपी करता था, यूट्यूब पे डालता था, 2018. 2018 was like 7 years of creating content and now you see. Yeah, 6 years of making mistakes, creating content, and 1 year of, you know, that kind of converting into something good. Crazy. 6 years of not giving up and creating content. ऐसे बीच में बहुत बार नहीं आया कि बीच में नहीं हो पाया, छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं. मैं डालता ही रहता था. मेरे पास हार्ड डिस्क में अभी भी वो सारे वीडियोस है. मैं दिखाऊंगा एक दिन अपना. वी यूजुअली मीट 2-3 वीक्स में एक बार, तो मैं दिखाऊंगा इतना घटिया कंटेंट. अभी लग गया कि विदाउट शेम यू यूज्ड टू पुट इट आउट, राइट? हाँ, टोटली. आई यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स, आई यूज्ड टू सिंग. अब मेरा आवाज कैसा है, भारी आवाज है मेरा थोड़ा भाई, लेकिन फिर भी ये सब करते थे. मैं गाना गा देता था भाई. क्रेजी है यार. मतलब इतना लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए हमको भाई. इतना कॉन्फिडेंस चाहिए हमको कि भाई गाना गा के वहीं से बिल्ड हो गया वो. बट एवरीथिंग यूज्ड टू पुट ऑन यूट्यूब, राइट? यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. आई विल शो यू माय आर्काइव्स. आर्काइव कर दिया सब आर्काइव्ड है, सब है इंस्टाग्राम पे अभी भी मेरे. नहीं कभी नहीं कर रहा ये तो मैं. So coming back to the questions, I think you have already answered a lot of questions that were there like throughout the journey. For example, we asked for how did the fitness first entered your life. I think you talked about tennis and that's how it ended. Yeah. Then be honest, what was your discipline built from passion, pain or pressure? Like that is a question. Pressure. See, कैसा होता था, the pressure to perform every time when you are playing a tournament. It was always built from pressure. अब मेरे सिर्फ लाइफ में 2 ही कोचेस रहे हैं. जो फर्स्ट वाले थे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. जो सेकंड मेरे जो कोच थे उनका एक डायलॉग अभी भी याद है मेरे को. आई वॉज सुपर सिक दैट डे और मैं नहीं गया प्रैक्टिस पे और मैंने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी. उन्होंने फिर भी मेरे को ज़बरदस्ती बुलाया कोर्ट पे. मैं गया अधभरा पूरा 3 बजे दोपहर को धूप में. मेरे को कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, तेरे को बनना है कि नहीं बनना है? मैंने कहा सर पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है. तो मेरे को कहते हैं कि तू कहीं और है, तेरी तबीयत इससे भी ज़्यादा ख़राब है, कोई तेरे पापा को मार रहा होगा तो तू क्या करेगा? मैं बोला मैं जाऊँगा, मैं उसका खून कर दूँगा जाके ऑब्वियसली. तो कहते तो कि वाई डोंट यू नो डू दैट फॉर योर स्पोर्ट और ऑब्सेशन. देयर इज़ नो ऑब्सेशन यू हैव. तब भी मुझे काइंड ऑफ रियलाइज़ हुआ कि ओके ये मेरा ऑब्सेशन नहीं है शायद. मेरा ऑब्सेशन तो मेरे को दिख नहीं रहा था पर मैं कंटेंट बना रहा हूँ इतने टाइम से, वो है. और प्रेशर में क्या होता है ना टेनिस में, I don't know if you have you played any tournaments कभी भी? Yeah, I have been a national basketball player, long jump, high jump, 100 meter, 200. तो पता है जिटर्स आने लगते. हाँ. पहला टूर्नामेंट, दूसरा टूर्नामेंट, स्पेशली वो होता है. उसके बाद एक पॉइंट आता है कि when you are losing and you don't know what to do, तब आपकी फट जाती है. So the pressure to perform that time also, trying to save yourself because everybody is watching you. कि क्या करोगे अब, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास.
एम्बैरेसमेंट भी आता है ना कि यार बहुत हार ज्यादा। गए करके, हारने हाँ। वाला एम्बैरेसमेंट आता है। हार गए, क्या करूँ, गुस्सा आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है. So to have that sane mindset at that time, I think playing lot of tournaments, losing again and again and It is like okay, ठीक है, हार गए, ठीक है, बेटर करके नेक्स्ट टाइम आता हूँ, इस तरीके से होता है. But you talked about obsession. I think I want to touch down on that कि being obsessed is the most important. exactly यार, like passion आया, पता चला, passion पता चला, ठीक है. But if you're not obsessed with Something na doesn't work out. it is not enjoyable. Like for example, I take my example, like I'm obsessed with myself also, ताकि वो personal growth तभी आता है मेरा कि I'm obsessed with my, I want to look good, I want to feel good, I work out good, eat good, so that it's a self love sort of thing that I follow. And with brand, like with Athflex, I'm obsessed with the brand to take it to the next level, make something new. I'm passionate about it. तुम संडे बुलाओ, सैटरडे बुलाओ, कुछ भी कभी बुलाओ, रात को 12 बजे बिठा दो, मेरे को कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता. आई डोंट सी दिस एज अ वर्क. आई एम ऑब्सेस्ड एंड आई लव डूइंग दिस. That matters the most, I think. क्योंकि I think playing tennis was my interest and passion. Yeah, But you're not obsessed. I was not obsessed. You're obsessed with content. Exactly, that's the thing. I'm obsessed with it. मैं रोज कैमरा लेके जाता हूँ, ट्राइपॉड लेके जाता हूँ. कहीं अभी भी मेरे बैग में कैमरा पड़ा हुआ है, तो मैं कहीं पे भी कुछ भी शूट करने लगूंगा, मजा आती है because it doesn't. What you love and you are obsessed with it. And that's how I think कि अगर obsessed रहेंगे ना तो ही वो progress भी आता है. वो इच्छा होती है कि भाई कुछ नया करना. कुछ नया करना है कि कुछ trying to get better every single day, कुछ भी करके कि मैं कैसे क्या प्रोवाइड कर पा रहा हूँ किसी को भी. So I'm gonna repeat the same question. उसमें मेरा 2 cents आता है कि discipline built from passion, pain or pressure. Pressure. I think you talked about pressure. Can I give one more example? I'm really sorry I'm cutting you here. प्रेशर का एक एग्जांपल देता हूँ डिसिप्लिन वाला. हमारे कोर्ट पे कैसा रूल था कि 4 लोगों का एक बैच था जो हमारा हु आर हाई परफॉर्मेंस बैच ऐसा कहते थे उनको. अब सुबह डॉट 6 बजे फिटनेस स्टार्ट कर देनी है. चारों में से एक भी बंदा अगर 2 मिनट लेट आया तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 व्हाटएवर मिनट्स, 8 मिनट्स. मेरे भी बताता हूँ. राइट, 8 मिनट्स ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑल 4 ऑफ यू. उसमें हाई नीज कर रहे हैं, वॉल सेट्स करवा रहे हैं, स्क्वाट्स करवा रहे हैं नॉन स्टॉप, और उसके बाद खेलना भी है, फिटनेस भी वही रेगुलर करनी है. तो आउट ऑफ प्रेशर इतना ज़्यादा वो डिसिप्लिन वाला दिमाग में घुस गया ना कि करना है तो करना ही है, ये नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, रोज़ करना है, ये चीज़ रिपीट करते रहो. इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल नाउ. Lifestyle हो जाता है. Yes, this is what if there is. तो my thing was कि these 3 things that we talked about, pain, passion and pressure, मेरे को लग रहा है ये तीनों लागू हो जाता है भाई. हो सकता है. पैशन होगा तो प्रेशर आता है, प्रेशर पेन होगा तो भी प्रेशर आता है. मतलब इट इज इंटरकनेक्टेड एंड ऑफ द डे. या पेन तो होगा ही. हाँ, सही बात है. प्रेशर भी आएगा, पैशन होगा तो उसके लिए अपने को प्रेशर आता है, प्रेशर आता है तो पेन होता है. अगर हारते हैं कुछ भी होता है, देयर इज अ पेन, देन वी टेक दैट एज अ पैशन, देन वी पुट प्रेशर ऑन आवरसेल्फ एंड देन वी डू द सेम रूटीन. राइट. एंड ऑफ द डे अपने को मिल जाता है द बाय प्रोडक्ट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ. राइट. Crazy. So the last question for this segment would be, what was the tiny habit that changed everything for you? My tiny habit was, showing up every day. Consistency. Consistency, yeah. Show up every day. Doesn't matter how you're feeling. क्योंकि मैं एक चीज़ रिसेंटली लास्ट ईयर ही सीखा हूँ कि your actions should not be led by your emotions. Your actions have to, be led by your vision and mission. मेरे को गंदा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यार आई डोंट केयर, आई एम गोइंग टू, या एग्जैक्टली. You have to do your stuff even if you feel sad, betrayed, cheated, whatever. Oh bhai, you have to go do the thing. ये मतलब I think I have also learned this the hard way. I was also like involved, मतलब ऐसा overwhelmed हो जाते थे इमोशन के हिसाब से, like lot of things. और वो लूप बहुत गंदा है. एक बार घुस गए ना अंदर तो फिर पूरा दिन वैसा ही फील होगा, रात को भी वैसा ही फील हो रहा है, सुबह भी वही फील हो रहा है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क. 100%. I totally agree to that. So we are going to the second segment, which is called natural training and industry pressure. Now damn. you have talked about yourself, Yes. about tennis, about yourself and sab kuch. But end of the day, now we are into the fitness industry, in the natural athlete wala industry. So we have to bust some myth over here. मेरे को तो एंड्रू भाई नेचुरल नहीं लगते guys. अरे भाई
नहीं मजाक कर रहा मैं हूँ। सच में नैटी हूँ भाई, वो वाला नैटी नहीं हो जो नैटी दिखते और होते नहीं है, वैसा वाला सीन नहीं नहीं है। एक्चुअली नेचुरल, सॉरी। What's been your biggest internal battle being a natural athlete? Comparison, self-doubt or burnout? कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो सी व्हाट आई क्रिएट ऑन सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ लेसन्स आई वांट टू टेल माई सेल्फ एवरी डे। इट इज़ अ रिमाइंडर टू सेल्फ ऑल्सो, राइट? मैं जो कुछ भी बोलता हूँ तो उसमें एक सेगमेंट पे मैं हेविली फोकस करता हूँ विच इज़ कंपेरिजन्स। काइंड ऑफ पहले करता था, आई एम ओवर दैट नाउ। क्योंकि कंपेरिजन क्या यार, जैसे ही इंस्टाग्राम खोलो तुरंत कोई ऐसा बंदा आ जाता है हु इज़ वे मोर गुड लुकिंग देन यू, और उसके बाद आप जिम जाते हो कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो रिजल्ट मिलते नहीं है। फिर अब उसी वो एनवी वाले, जेलसी वाले लूप होल में चले जाते हो। देन यू रियलाइज कि क्या कर रहा हूँ यार मैं, कि यू वर्सेस यू, प्लीज यू वर्सेस यू, दैट इज इट, इट हैज टू बी दैट। और वो यू वर्सेस यू के बाद ना यू आर हैप्पी यार, बहुत वही you are complacent, एकदम शांत लगता है, एकदम आहा, कोई लोड नहीं है। Like I think we also follow for our brand also. you With versus Athletics you, also. wow, You versus you और amazing. Athletics में भी same है, like every internal team, like everybody, if they any time talk about competition और ये मैं नहीं बोलूंगा लेकिन टीम ही बोल देगी भाई हमारा कोई competition ही नहीं है भाई। मैंने आपको ये बोलते हुए 3-4 बार सुना है, क्योंकि There is nobody like it's our versus like you There's versus no you competition, anytime, you like, versus नहीं you. कि Totally. what with the better version of yourself। हाँ, क्योंकि मैं तो पहले डेविड लेड को देखता था यार, मैं यूट्यूब पे। क्या यार वापस ट्रेंड आ गया, मेरे को ऐसा लगा बहुत ज्यादा वापस आ गया है। अच्छी बात है वो। हाँ वो ऐसे natural मसीहा athlete जैसा है। है। नहीं, क्या Natural बात athlete नहीं है? नहीं पता आपको? वाओ, आई एम सो हैप्पी कि ये पॉडकास्ट पे ये पता बात चल कर रहा है रहे हो? आपको। नहीं है वो नेचुरल। मैं आपको वीडियोस भेजूंगा उसके, हाँ आपको पता चल जाएगा। ही नॉट नैटी। He was natty for a very longer period of time। ही स्टार्टेड यूजिंग गियर व्हेन ही वाज 17। ओह लेकिन वो तो भी लगता नहीं है कैसा। क्योंकि इंडिया के बाहर क्या कंसेप्ट है, शायद आपके आगे के क्वेश्चन कोई आंसर हो जाए इसमें, तो कि दे हैव नॉलेज Absolutely। of what kind of gear to consume. What are precautions to take? Exactly. What meds to keep? सब Exactly. what tests to do? Exactly. ये गिनी पिग वाला सीन नहीं है। अपने यहाँ यहाँ तो तो guinea pig है। बहुत खराब है। कोई कुछ भी सब डालता है, कुछ भी डाल रहा है, किसी को देख के कुछ भी डाल देते हैं। अभी 2-3 इन्फ्लुएंसर्स इतने वायरल है एंड इट इज सो बैड टू लुक एट देम। एक लड़का है 16 साल का है, वो उसने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है एंड ये कंपैरिजन वाला सेगमेंट आता है वापस से। ऑब्वियसली दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। Comparison, उसके दिमाग 100%। में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मुझे फटाफट ऐसा बनना है, मुझे फटाफट इसके जैसा फिजिक चाहिए, और वो अभी से गिर ले रहा है। 16 साल के लड़के को, स्किनी है वो पूरा, उसको गायनो हो रखा है अभी से, एंड इट इज सो बैड। मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरा एक एम रहता है टू मेक द कंटेंट स्पेस अ पॉजिटिव स्पेस। Exactly। और वो ये लोग तो पता नहीं कुछ अलग ही ट्रेन पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत खराब। और मेरे को लग रहा है कि अभी के जो नए जनरेशन है वो पूरे यही कंपैरिजन लूप में ही है। बहुत कि ज्यादा मैंने नोटिस किया कि दिस जेन ज़ी और द पीपल बिफोर दैट, लाइक नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग। टोटली। प्रॉब्लम इतना होता है, सोचते उसको इतना है, एक्चुअली एक्शन इतना होता है। एक्चुअली बहुत खराब चीज है सोचते वो। उसको इतना बड़ा कर देते हैं, हाँ। होता प्रॉब्लम इतना ही है। मेरा तो बच्चा आएगा ना, मैं तो फोन वोन दूंगा ही नहीं उसको। मैं भी वही सोच रहा हूँ। 8-10 साल का हो जाएगा ना, नहीं देना ही फोन नहीं, क्या फोन- होता है पता ही नहीं भाई। स्पोर्ट्स करने भी दो। हाँ, खेल बाहर जाके, बाहर दुनिया जाके देख, गटर में गिर, कुछ भी जो को करना है कर। ये है वो माइंडसेट तो है हाँ। कि भाई फोन इज लाइक वेरी गुड, बट आई थिंक इन टुडेज इट्स लाइक 50-50 नहीं रहा, 50-50 नहीं है, 80-20 है वो। क्योंकि अपने बहुत अलग टॉपिक पे चले जाएंगे इसकी वजह से। Let's come back to the topic. Do you think the pressure to look a certain way fast is ruining the fitness space for young guys? हाँ, I think टोटली। we just जैसे इसके told, पहले like, हमने 16 वही years बात वाला की। जो अपन ने बात करी, मुझे लगा कि हम वहीं पहुंचने वही वाले वही एंड ऑफ द डे कैसे यार, वो उसका नाम भी मुझे याद नहीं, वरना मैं अभी। नाम नहीं देना अपने को, नाम नहीं देंगे, like we are not gonna disclose any names on the मेक सेंस। The other thing is we see a ton of people hitting the easy way using gear shortcuts and etc. I think we already talked about those things. People are going the easy way rather than going the hard way of actually building a foundation, then taking it to the next. इसका पता है, मेरा एक दूसरा थिंकिंग भी है इसके ऊपर कि पीपल थिंक टेकिंग एनाबॉलिक्स इज द इजी वे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड इट। क्योंकि अपने स्टेज पे जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग देखते हैं, नॉट एवरीबडी इज क्रिस बम्स्टेड, बट दोस 500 पीपल, ऑल ऑफ देम आर टेकिंग इट, बट स्टिल दे आर नॉट विनिंग। सो इट्स नॉट इजी, मुझे ऐसा लगता है उसके। और ये प्रॉब्लम ये कि ये भी है कंपैरिजन के साथ साथ, पीपल थिंक इट्स द इजियर वे।
which is But wrong. it's not. Yeah. It is not. It requires hard work. तुमको खाना तो फिर भी अच्छे से ही पड़ेगा. Even 10x hard work, even 10x more consistency. Yeah, because then your body is going to demand more from you. Discipline. और प्रॉब्लम ये है कि वही आपने बोला ना कि Instagram has changed a lot of things. For example, शोबाजी देख के देखा देखी बहुत ज्यादा हो गया है. इसको देख के बोलता है कि भाई मेरे को ऐसी बॉडी बनाए, तो वो बोलता है डाल दो, ये कर दो. गुरुजी को फॉलो करते, गुरुजी पकड़ लेते हैं, कोई वो कुछ भी ठोकता रहता है उसकी में. कितने यार अपने अहमदाबाद में भी कुछ जिम्स है. आई थिंक यू आर अवेयर. बहुत सारे. इट इज वेरी कॉमन. लोगों को आइडिया नहीं होता, वो ट्रेनर बोल देता है ये डाल दो बन I जाएगी am बॉडी. seeing like I'm not going to name them or anything, but I am seeing people in my gym or places like that where I see them injecting in the gym or somewhere, and I am seeing him injecting and doing all these things from last 3-4 months, and I see no result happening. मतलब उसका कुछ भी नहीं change हुआ, ऐसा का ऐसा ही है. उसका कोई consistency नहीं है. खाने मुझे लगता है मैजिक है ये. मैं डालूंगा और मैं बाहर जाके मैकडी खाऊंगा रोज. तो कैसे काम होगा भाई? So now one thing is, how much of a mind game is it to stay natural when we are watching around? Yeah, see, it is, you know, it correlates to what we talked about few minutes back. It is you versus you. You should never forget that. कि if you know कि भाई मेरा competition मैं ही हूँ, तो वो comparison वहीं पे kill हो जाता है उसी वक्त. अब जैसे मैं साकेत गोखले को देखूंगा तो मैं उसकी तारीफ करूंगा. Once I realize कि it is me versus me, तो मैं दूसरी बढ़िया फिजिक देख के मैं तारीफ करूंगा उसकी. मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि यार ऐसा बॉडी बनाना है मुझे, बट आई बी लाइक यार व्हाट अ फिजिक. मैं देखूंगा एंड्रू भाई क्या आर्म्स है यार, कि सॉलिड. पर मुझे पता है कि मेरे को ये अचीव करने में और 6 साल लगेंगे. 6 साल लगेंगे. It's true. Well, everybody has different body composition. Like I think I might say कि भाई श्लोक भाई का chest. हाँ exactly. See, but you know the reality कि मेरे को टाइम मेरे को लगेगा. भी टाइम लगने वाला. I know the shit. Exactly. क्वेश्चन वापस वही है कि नेचुरल रहने का जो चॉइस है वो आपको ऐसा प्रेशर लगता है कि लगता है कि ठीक है, मतलब आई चूज टू बी नेचुरल. नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं गियर लेने लगूंगा. अभी मैं यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, राइट? बट इफ यू बट आपने कभी सोचा है ऐसा लेने का? अरे वो वाइल्ड थॉट्स तो किसको नहीं आए ऑब्वियसली. कि ऐसा एक बार ऐसे इमेजिन करके देखा था कि यार अगर मैं ठोकने लगूँ, इंजेक्ट करने लगूँ, तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा बॉडी बनने में. फिर मैंने ये सोचा, उसके बाद तुरंत मेरा नेक्स्ट थॉट ये था कि यार पर अगर 40 पे मर गया तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी. बट आई थिंक वी आर इन द लॉन्ग टर्म गेम. एग्जैक्टली. कि आराम से लंबे जीना है तो यू हैव टू बी फिट. योर ब्लड लेवल्स एंड एवरीथिंग शुड बी फाइन. टोटली सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए. आप वही देख रहे, वी आर नॉट चेजिंग एनी स्टेज और समथिंग. हाँ एग्जैक्टली. अगर प्रोफेशनल खेलना है तो आई वेरी मच रिस्पेक्ट दैट चॉइस कि इट इज इम्पोर्टेंट. इट्स अ वेरी नेक्स्ट लेवल माइंडसेट गेम है. मेरे को लगता है कि जैसे मैंने आईसीएन किया तो द ड्यूरेशन फॉर आईसीएन प्रेप, माय माइंडसेट वाज लाइक crazy. Like I think I was on some god level shit. Yeah. Of course comes with a price. Totally. कि एक अजीब सा mindset हो जाता है कि where you have to be selfish enough to say no to a lot of things. Yeah. Hell lot of things. Yeah. No. I have to be very clear about my focus, my priorities. कि ये इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाएगा. ये same level of mindset, you know, I kind of started gaining last year जब मैंने सोचा कि अब से अपलोड करेंगे. तो वो एक पता है, यू आर जोन्ड इन ऑल द टाइम. और एक छोटा एग्जांपल मैं बोलूँगा. यहाँ पे पहुँचने से पहले एंड्रू भाई आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू वांट टू हैव फॉर लंच, और मैंने पूछा आप क्या खा रहे हो, तो ही सेड कि वही भाई अपना तो डाइट चल रहा है ओट्स, एंड ही इज नॉट प्रेपिंग राइट नाउ. आई एम ऑन द सेम थिंग. तो मैंने सेम चीज़ कही उनको भी कि भाई आप ये खा रहे हो तो मैं भी डाइट ही फॉलो करने वाला हूँ कि और कुछ नहीं खा रहा अभी बाहर से. तो ये होता है. बट या इफ यू आर कम्पीटिंग वेरी प्रोफेशनली जहाँ पे गेयर नेसेसरी है, इट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. Absolutely. So they have to do it. Yeah, they have to do it, but please have a team with yourself. अगर आप stupidly भी ले रहे हो तो consult a doctor, और कुछ नहीं. Yeah. So now the third segment of the podcast is training philosophy. Is what we have named it. ठीक है. What's the most overrated training advice you see everywhere that needs to die? Fat loss करने के लिए सिर्फ कार्डियो करना चाहिए. It's wrong. मैं नहीं मानता हूँ ये कि you need to be eating right, you have to, you know, lift some weights. फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी हो ही जाएगा उसमें. तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेनर्स को हम ये बोलते सुनते हैं ऐसे कि
सिर्फ कार्डियो करो, जाओ मैडम कार्डियो करो, वो तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा। अरे वजन उतर जाएगा, पर उनको जो एक्चुअली नेसेसिटी है हाँ वो नहीं होगा। तो यू मीन टू से द वन फैट लॉस के लिए कार्डियो करना पड़ेगा, सिर्फ कार्डियो और कुछ नहीं, कार्डियो वेट्स लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, कार्डियो करो, बाहर जाके जो खाना है खाओ। हाँ। सेकंड क्वेश्चन, डू यू ट्रेन फॉर स्ट्रेंथ, एस्थेटिक्स और समथिंग डीपर? Strength and aesthetics and my mental well-being. मतलब I think you train for all of it. Yeah, Strength, aesthetics and something deeper is mental health. mental health, totally. हाँ, सुबह उठ के सबसे पहले जिम जाना तो जाना ही है। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि किसी दिन ऐसा बहुत रेयर ओकेशन पे ऐसा होता है कि रात को जाना पड़ता है, तो मैं रात को भी चला जाऊंगा, चाहे 10:30 हो गए, मेरा जिम 11 बजे बंद हो जाता है, तो 10:30 बजे पहुंच के भी जिम तो जाके आऊँगा। जा कुछ तो करके आना पड़ेगा वैसा। मैं भी ऐसे चले जाता हूँ, सब मन बिल्कुल नहीं होता है। वो मेरा मी टाइम होता है फिर वही कि मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, म्यूजिक लगा के देता हूँ मोड चालू, हाँ वही ट्रेडिशनल फंक्शनल ट्रेनिंग, एप्पल वॉच मोड बंद, कुछ नहीं करना। वहां पे थोड़ा चिल करूंगा, बात करूंगा, वर्कआउट करूंगा, बस वो एक अलग ही जोन आउट वाला सीन रहता है। सो इफ यू हैड टू थ्रो आउट एवरीथिंग एंड कीप जस्ट वन प्रिंसिपल, व्हाट्स द नॉन नेगोशिएबल इन योर ट्रेनिंग? मतलब वो क्या है? इन माई ट्रेनिंग एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डजेंट मैटर हाउ आई एम फीलिंग। अगर मुझे बुखार भी है, मैं फीवर में भी चला जाता हूँ जिम, तो मुझसे जितना एफर्ट निकलेगा उतना मैं दूंगा। उसके बाद सेकंड थिंग कि बहुत बार हम दोनों थोड़े ऑक्यूपाइड रहते हैं, अपने शेड्यूल वैसे तो अपने पास टाइम कम होता है, तो मुझे पता है कि 20 मिनट है मेरे पास, तो 20 मिनट में मैं इतना भयंकर ट्रेन करूंगा, तो दैट 20 मिनट्स वाला वर्कआउट समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट ऑफ द ईयर। 100% इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि एग्जैक्टली, सो एफर्ट मैटर्स अ लॉट। और किसी भी चीज में द मोर एफर्ट यू पुट इन, द मोर रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट। इट्स एज सिंपल एज दैट। नॉट एवरी सिंगल डे बट मोस्टली उस दिन पे हाउ यू आर फीलिंग एंड बेस्ड ऑन दैट फीलिंग द एफर्ट हैज टू बी मोर देन 100%। व्हाट प्रिंसिपल्स डू यू नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन? Don't be stupid, lift with a good form. Weight doesn't matter, it's always form over weight जो अपने मानते हैं, क्योंकि ये obviously ये मैं stupid mistakes करके ही सीखा हूँ। हर किसी का यही होता है कि अपने चाहेंगे squat आधा घंटा deadlift के नहीं करना। Listen to your body, that is very important, वो मैं मानता हूँ। Form over weight and listen to your body, yeah, listen to your body. What do you think about weights और hypertrophy और rep range, ये सब चीज़ों के ऊपर आपका like what's your take? हाँ सी, अब कुछ होता है कि जिनको सिर्फ कंपटीशन खेलना है, वो स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट वाला, तो उनका ट्रेनिंग फिलोसफी इज़ वेरी डिफरेंट। दे विल ट्रेन बिटवीन 1 to 5 वाला रेप रेंज। अपने को वो नहीं करना है। मैं थोड़ा हाइपरट्रोफी साइड पे ज़्यादा हूँ, पर मैं स्ट्रेंथ पे भी ज़्यादा हूँ। सो व्हाट आई डू इज़ माई मिनिमम रेप रेंज, किसी भी वेट को जब मैं इंक्रीज करता हूँ, मैं ट्रैक करता रहता हूँ। सब मेरे पास 2023 से लेके अभी तक के सारे ट्रैक रिकॉर्ड है हर एक लिफ्टिंग सेशन के। कैसे ट्रैक है? मैं फोन में लिखता रहता हूँ, हाँ, कि इतना किया, इतना अचीव किया, अब नेक्स्ट सेशन में मेरे को ये कर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक आई हैव टू इनकलकेट दैट वन थिंग, क्योंकि मैंने वो सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मे बी यू हैव नॉट नोटिस्ड अराउंड इट योरसेल्फ। ऐसे क्या होता है कि एक चीज होता है कि बहुत ही सिंपल कोट है, एनीथिंग ट्रैक्ड लीड्स टू प्रोग्रेस, राइट? तो अब एथलेटिक्स में यू माइट हैव नोटिस के उसमें ट्रैक यू करते हैव अ हैं ट्रैक, हाँ, तो वो प्रोग्रेस करेगा। एंड सेम थिंग गोज विद योर ट्रेनिंग। मैं ट्रेनिंग ट्रैक नहीं कर रहा, लेकिन है ना वेट ट्रैक रोज करता हूँ। एवरी डे मॉर्निंग आई ट्रैक माई वेट, बॉडी वेट एंड आई ट्रैक माई फूड। ये दो चीज तो है। एंड बॉडी मेजरमेंट्स वीकली बेस पे ट्रैक करता हूँ। परफेक्ट। ट्रेनिंग मैंने पूरे प्रेप में भी ट्रैक नहीं किया, एंड्रू 2.0 में भी ट्रैक नहीं किया, लेकिन इस बार अब बल्क है ना, हाँ, तो आई एम गोइंग टू ट्रैक बिकॉज आई हैव टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ और गेन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसको जो वीक पार्ट है उसको बेटर करना है, तो आई हैव टू ट्रैक इट, जो मैंने इस बार डिसाइड किया है। और अभी आई थिंक बाय टुडे, टुमारो एंड थिंग्स लाइक दैट, कमिंग वीक आई एम गोना स्टार्ट ट्रैकिंग। टुडे मतलब आज वही So coming back to what I was saying कि मैं 6 to 15 की रेप रेंज में ट्रेन 6 to 15 एग्जैक्टली। सो 15 रेप हिट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन आई इंक्रीज द वेट। 6 रेप हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, यू जस्ट नो कि ओके ठीक है। और मैं एक ही वर्किंग सेट लेता हूँ हर एक एक्सरसाइज का। सो देयर इज नॉट मच वॉल्यूम। पहले मैं बहुत ज्यादा ट्रेन करता था, 2-2, 3-3 घंटे जिम में ही पड़ा रहता था मैं। फिर यू नो दैट द सेम थिंग, लिसन टू योर बॉडी, व्हाट वाज द बेस्ट फॉर यू। ओनली वन वर्किंग सेट है? नहीं ऐसा नहीं, बाकी सारे वेरिएशंस है, वार्म अप सेट्स भी है, वेरिएशंस भी है। एग्जैक्टली। मुझे पता है कि कोई भी मेरे साथ ट्रेन करेगा ना, उसकी फट जाएगी। मेरे 2 वर्किंग सेट है, उसके पहले जितने भी सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वार्म अप सेट 2-3 सेट वार्म अप हो गए, हाँ, लेकिन प्रॉपर व्हाट आई एम प्लानिंग, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो जो 2 ट्रेनिंग सेट है
उसको फेलियर सेट्स कर दो, हाँ वही तो बात है। वो पता है क्या होगा, लोगों को फेलियर ही कर दो। आप मतलब वही पहला working फेलियर set सेट मारोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा मारने की ताकत नहीं है अब इसीलिए मैं एक पे आ गया हूँ। अब पहले मेरे भी दो थे, फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं दूसरा मार पा रहा हूँ मतलब पहला सेट उतना हाई एफर्ट नहीं था, तो फिर क्यों ना उतना हाई एफर्ट दे। बस देख सकते हो उस चीज को, मतलब वी कैन डू दैट। Okay, coming to the fourth segment of the podcast, which is supplementation and nutrition. very ये important. category को डाला हुआ है। So, what's a common mistake, diet mistake you see young lifters making over and over again? Dirty bulking. Dirty bulking. Yeah, and you know, trying to chase those abs when you are too young. एक तो डर्टी बल्क करना गलत बात है, और एक बहुत ही यंग एज में ना वो एब्स और वो कट्स और ये सारी चीजें लोग ऑब्सेस्ड होते हैं उससे कि भाई ये कट, इतनी वेन्स, ये वो। अरे उसके चक्कर में आधे से ज्यादा इंडिया या तो बहुत ज्यादा पतला है या तो बहुत ओवरवेट है। ये हो गया अभी। We see all the young Gen Z creators, mostly everybody is on the slim side. S size सबसे ज्यादा हमारा स्पाइक हो गया था बीच में। क्या बात कर, हाँ, S size बहुत ज्यादा स्पाइक हो गया था। S size स्पाइक हो रहा है पूरे इंडस्ट्री में। मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ बट मैं एल पहनता हूँ वो दिखता नहीं है सिर्फ वो तरह। तो S size स्पाइक हुआ था, हमने बोला कि यार लोग को क्या हो गया है, ऐसे क्यों पतले पतले होके एकदम घूम रहे। बीच में वो बहुत चल गया था। मेरा हाईएस्ट फॉलोइंग ना इट इज फ्रॉम 14 to 20। अच्छा, 14-20। तो जितने, और मेरा हाईएस्ट इंटरेक्शन मेरे जितने भी फॉलोअर्स या फैंस कह लो कुछ भी कह लो वो फ्लेक्स फेस्ट के टाइम पे था। ओह यस तो यस यस। अब हुआ क्या था, सब लोग आके मेरे को छोटे छोटे बच्चे आके पूछ रहे हैं कि सर एब्स कैसे लेके आए, एब्स कैसे लेके आए। मैं सबको, मेरा मुंह दुख गया था एक चीज रिपीट कर करके कि भाई प्लीज एब्स चेज मत करो अभी, कि आपकी ग्रोइंग एज है, कि अभी ढंग से सिर्फ घर का खाना खाओगे तो भी चलेगा, राइट। कि बाहर का ज्यादा कचरा मत खाओ, एक एडवाइस ये थी। और दूसरा कि डोंट ट्राई टू बी एस्थेटिक। कंपैरिजन अभी स्कूल में ये जगह पे सबका ये बहुत ज्यादा होता है। स्कूल में कंपैरिजन हो गया। अरे मैं अब सोचो अपने टाइम पे तो उतना ज्यादा सोशल मीडिया का कुछ था नहीं, तब भी मेरे क्लास में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे लड़के से हाथ दबा दबा के भाई देख वेन्स, और मैं भी करता था वेन्स। अरे मैं खुद करता था तो फिर उसमें भाई वेन्स, अरे भाई तुम हो 35 किलो के। मैं तो तभी भी करता, मैं तो 35 का ही था भाई, तो भी वेन्स दिखा रहा था भाई। अरे यहाँ वेन्स आ रही है भाई। वो होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि दी एज ऑफ 16 to 22, 23 लड़कों में इट्स दी एनाबॉलिक विंडो। इस टाइम जो ग्रोथ आएगा वो नहीं आएगा भाई 23 के बाद। आई थिंक मैंने वो टाइम पे कॉन्स्टेंटली ट्रेन किया, इनकंसिस्टेंटली बट ट्रेन और डाइट मैंने किया हुआ, शायद इसकी वजह से अब जब मैंने कट किया तो दिखा, थोड़ा दिखा। हाँ, ना तो कुछ नहीं होता। उस टाइम तो मैं वो ग्लूकॉन डी की ऐड आती थी पता है, वो सूरज स्ट्रॉ से बच्चे को सारी एनर्जी चूस लेता है, मैं वो बच्चा था। हाँ क्योंकि मैं पूरे टाइम टेनिस कोर्ट पे ही रहता था, तो मेरी ग्रोइंग एज में तो मैं मेरी एंड्योरेंस बिल्ड कर रहा था। मैं इतना स्किनी था, इतना स्किनी। Even when I turned 21, I was only 59 kgs. लेकिन as soon as you started doing weight training, मेरे को लग रहा है कि आपका स्पाइक और जंप फटाफट आया होगा। हो गया, क्योंकि वो कैलोरीज बर्न होना टेनिस की वजह से खत्म हो गया। I stopped playing tennis and I simply just went to the gym and lift weights, और कुछ नहीं करना। तो वो तो फिर ऑटोमेटिक वेट बढ़ना शुरू हुआ। पर या ऑब्वियसली विद एज इट हैज स्लोड डाउन। इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू गेन वेट नाउ, पर मैं पेशेंट बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे लिए तो बहुत फास्ट हो गया अभी। मैंने अच्छी बात है यार, मैं तो खुश नसीब मानता हूँ इस लोगों को। ICN में I was 65, now I am 73। महीना भी नहीं, महीना हो रहा है। मुझे 73 आते आते ना मेरे तो ऐसे आंख में से पानी आ जाता है कि कब 73 आओ भगवान प्लीज, कितना खा रहा हूँ। So second question is like, let's play supplement roulette. Like if you only keep 2 in your stack, what's staying? वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। हाँ, क्योंकि प्री वर्कआउट तो यार कॉफी से काम चला लेंगे, इट्स फाइन, बट वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। If I'm not wrong, you are a vegetarian, right? हाँ, turned vegetarian. When I used to play tennis, मैं प्रॉपर दबा के खाता था, कोई टेंशन नहीं था उस वक्त। मेरे पूरे फैमिली में से I was the only one who used to eat non-veg. Used to eat non-veg तब भी, अब वापस उनके जैसे वापस। और ऐसा कुछ नहीं है एक्सट्रीम के भाई एनिमल क्रूएल्टी या ऐसा कुछ। मेरा ऐसा कोई जस्ट आउट ऑफ इट्स फाइन। आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ माय वे, ब्रिंग होम द फूड, कोक वैसे अगर नहीं चलेगा, इट्स फाइन। एज अ वेजिटेरियन आर यू एबल टू हिट योर प्रोटीन इनटेक? हाँ, हो जाता है। देखो मेरा एक गोल था, जब मुझे मेरा नीश पता चल गया कंटेंट बनाने का ये सब, तो मैंने ऐसा सोचा कि जब तक अपने पास स्पॉन्सरशिप नहीं आती अपने वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करेंगे। तब
ये गोल सेटिंग गोल सेटिंग है, ये सब ऐसा गोल सेटिंग है। तब मेरा मेन प्रोटीन सोर्स क्या होता था पता है? दिन का 100 ग्राम सोया चंक्स, 200 ग्राम पनीर, 1 लीटर दूध और 200 ग्राम दही। ये पचता कैसा था? मैं भी वही सोच रहा हूँ अब। और डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होता था? शुरू में 2-3 दिन तो बहुत गंदा हुआ था, मतलब समझ जाओ क्या हुआ होगा। तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, खाना है तो खाना है ये। हाँ वो एक हो जाता है, खाना है, पेट खराब हो, कुछ भी हो, मैं खा रहा हूँ वाला सिनेरियो है। सो इट्स लाइक क्रिएट, व्हाट्स योर टेक ऑन क्रिएटिन? क्रिएटिन अभी मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में अब लोगों को समझ आने लगा है क्रिएटिन के बारे में, और क्या उसका एक्चुअल यूज है, नॉट जस्ट फॉर lifting weights or in the gym, In but general also brain function, cognitive function, बहुत हेल्पफुल है ये सब एक्चुअली चीजों के लिए भी। हाँ इट जस्ट somehow I don't know what's the exact science behind it, पर अगर मैं नोटिस मतलब कर रहा हूँ कि चेंजेस है, आई एम एबल टू फोकस बेटर एट टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू नॉट बी एबल टू फोकस, तो वो अच्छा लग रहा है मुझे। How much do you take like on a daily? कितना? एवरेज जो एक स्कूप में 3 ग्राम आता है क्रिएटिन उतना ही। I take 5 grams. आई थिंक इट इज सेफ टू हैव 6 grams, अप टू 6 grams ना। और वो लोडिंग वाला फेज होता है, लोग करते हैं अभी। People do the loading and unloading, लेकिन मेरे को लगता है मैं consistently I think 1 साल से 5 ग्राम ही ले रहा हूँ, 1 साल से constantly 5 grams ले रहा हूँ। हाँ मेरा क्रिएटिन बंद नहीं हुआ है। माय फर्स्ट सप्लीमेंट वाज क्रिएटिन व्हिच आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग इन 2021 तब से क्रिएटिन बंद नहीं हुआ कभी भी मेरा। क्रिएटिन तो बीच में सब ऑफ हो जाता है, बट हाँ रैंडमली कि पैसे खत्म हो गए मेरे तो कि क्रिएटिन का डब्बा नहीं लेना अभी। do you think people are using steroids as shortcuts instead of support? Yes. Instead of support, like for example, you have trained for like 7-8 years, and then they choose to compete, and then they take gear as a support, as a supplement towards their growth, not as a shortcut. जैसे आपने वो 16 years वाला का वो शॉर्टकट के लिए वो ले रहे, सपोर्ट के लिए नहीं ले रहे, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे इसलिए वो लोग इंजेक्ट या फिर दे आर यूजिंग, करेक्ट, बट नॉट टू फॉर अ सपोर्ट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इट्स जस्ट अ वेरी एक्यूरेट स्टेटमेंट। और अगर सपोर्ट के लिए ले रहे हो तो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, बट फॉर शॉर्टकट्स यू आर जस्ट बीइंग स्टूपिड। वो स्टूपिड नहीं, consequences, they are not ready for to see the consequences कि क्या आने वाला है। उसको वो लड़के को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब इसका क्या होता है ना, आउट ऑफ नॉलेज यू स्टार्ट टेकिंग, मजा आने लगा, पर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वंस यू स्टॉप द डिप्रेशन किक्स इन, एंग्जाइटी होने लगती है, नींद नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड यू आर यूज्ड टू लुकिंग योरसेल्फ यू नो एक्सट्रीमली जैक्ड, एंड यू स्टॉप इंजेक्टिंग। वो बॉडी तो वापस बैक टू ग्राउंड जीरो जो था पहले आपका वही जाने वाला है। अब फिर वो बहुत सारी चीज़ें, एंग्जाइटी होने लगती है, स्लीप डिप्रिवेशन, ये वो तो नहीं पता चल रहा है इन लोगों को अभी, पर 1-2 साल बाद they'll realize कि this is wrong. They should stop doing it. Are we glorifying protein too much or not enough? Not enough, I think. Reason मैं समझाता हूँ। देखो यार, majority of the India is I think veg, ठीक है। अब अपने को नहीं पता कितना मेरे को मेरी दाल में से मिल रहा है, मैं शायद आई थिंक कितनी दाल खाऊंगा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द नॉन वेजिटेरियन फूड वी हैव। और इंडिया के बाहर एक चीज़ हमेशा लोग सोचते हैं कि यार बाहर के लोग इतने फिट कैसे हैं, अरे यार वो बचपन से मीट खा रहा है। That's right. एग्जैक्टली, उनका देयर फूड इज़ आई थिंक काइंड ऑफ क्लीनर, जो लोग फिट है उनकी बात करें, क्योंकि इंडिया के बाहर एक्सट्रीमली ओबीस लोग भी, एक्सट्रीमली ओबीस है वहाँ बाहर। तो इंडिया में स्पेसिफिकली फॉर वेजिटेरियंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वे प्रोटीन इन योर डाइट। मैं, मेरे पेरेंट्स जिम नहीं करते, उनको भी कंज्यूम करवाता हूँ कि खाओ भाई, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। क्योंकि वो क्या होता है, अपने को लगता है यार हड्डी दुख रही है, ये होने लगा, आफ्टर अ सर्टेन एज मसल लॉस होने लगता है उन लोगों को, तो समझ नहीं आता यार वो सपोर्ट करेगा तुमको अगर तुम खाना अभी से खाओगे या बाद में जाके भी खा रहे हो। ग्लोरीफाई तो मेरे को लग रहा है कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट। पहले तो उसको I'll give you an example. My nanny was a cancer patient, ठीक है। She I think passed away at the age of 65-66 ऐसा कुछ। उनके she had cancer for 6-7 years। अब उनको मेन चीज डाइट में क्या डॉक्टर ने रिकमेंड की पता है? वे प्रोटीन। अब आप सोचो। Exactly. So it's like whey protein is something that is needed to be on your everyday food intake. क्योंकि I think it's the reality कि Indian foods are filled with carbohydrates and low on the protein, and Indian मसालास and सब कुछ जिससे खाना बनाते हैं, इसमें तो जो
सब्जी में जो फाइबर होता है वो ही खत्म हो गया होता है, ऐसा लगता हाँ भाई, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई मॉम. मैंने कहा कि मैं सब्जी खाऊंगा पर कुक मत करो मेरे लिए, मैं कच्ची सब्जी खा लूंगा. मैं कच्ची सब्जी अभी भी खा जाता हूँ कि फाइबर रिच है यार ये बहुत ज्यादा. लेकिन उसको जो बनाते हैं जिस तरीके से, आई थिंक वो पूरा डेड सीन हो जाता काइंड ऑफ आई थिंक एग्जैक्टली. मुझे उसका न्यूट्रिशन क्या हो जाता है क्या, पर इतना समझ में आता है कि वो कम हो रहा है जो कुछ भी अपने खा रहे हैं, उसके बाद उसको इतना सारा तेल में घी में कुक करने के बाद है. मसाला ये वो का जैसे आई थिंक वो खाली वेजिटेबल्स के हिसाब से नहीं, बट मेनली अबाउट द होल फूड दैट वी इनटेक. इट्स ऑन द, अगर अपने फॉर एग्जाम्पल वी ट्रैक कि हाउ मच कार्ब्स, प्रोटीन, मैक्रोस देखते हैं, तो अगर नॉर्मल इंडियन फूड में अगर पर मील अगर मैं मैक्रोस देखता हूँ तो इट्स लाइक कार्ब सबसे ऑन द हाईएस्ट पार्ट है, प्रोटीन ना के बराबर है, और फाइबर वो भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, बस इतना ही है. और हर कार्ब जो भी खा रहे हो एंड ऑफ द डे फैट में कन्वर्ट हो रहा है, और वही चीज़ है. तो सो इट्स लाइक इम्पोर्टेंट कि मेरे हिसाब से अगर हर इंसान नॉर्मली घर पे हर मील के साथ एक वे प्रोटीन डाल दे, ऐड कर दे, हाँ बहुत हेल्थ तो होता भी है. अच्छा तो खासा जो भी इंडियंस या लड़के स्किनी फैट है ना अभी, वो नहीं होता उतना, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज अ हाई प्रोटीन डाइट कंट्रीब्यूट्स टू यू नॉट हैविंग वो स्टबर्न न्यू फैट. फॉर्म, हाँ, नॉट फॉर्मिंग फैट. So now coming to the fifth segment, which is the social media influence and authenticity. Very first question comes down to, has fitness on social media become more about flexing than educating? यस. अर्लियर पता है ओजी इन्फ्लुएंसर्स कौन थे अपने, पता है क्या आपको? Like फिटनेस वाले. इंडिया में? हाँ इंडिया में मेरे हिसाब से ना आई थिंक अभी भी है वो लोग. है अभी भी है. दे एग्जिस्ट, दे क्रिएट कंटेंट. मेरे को तो याद नहीं आ रहा, लेकिन गुरुमान, यस, जीत सलाल, गौरव तनेजा, ये सारे लोग. तो they were actually educating ना भाई. एग्जैक्टली, फिटनेस वाज एजुकेशन पहले, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था. अभी क्या हो गया, वो फ्लेक्सिंग वाला ही है. मेजॉरिटी ऑफ द फिटनेस क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम, दे डोंट टॉक, दे आर जस्ट शोकेसिंग देयर फिजिक. जो मुझे पता है कि दैट इज व्हाट सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम एवरीवन. क्योंकि मैं लेगेसी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो भी लोग याद रखेंगे कि ये आता था, 3 थिंग्स बोल के चला जाता था कुछ भी ऐसे करके बोल के चला जाता था, तो लोगों को याद रहता है. बट नोबडी इज गोइंग टू रिमेंबर मी फॉर माई फिजिक, क्योंकि कल उठ के ऐसा कोई बंदा आएगा हु इज वे मोर गुड लुकिंग देन आई एम, तो वो ओवरटेक कर लेगा. फिर तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा आउटस्टैंड करने के लिए कुछ है ही नहीं. क्या exactly. क्या कर लोगे उसके बाद तुम? नो, व्हाई विल पीपल रिमेंबर एंड्रू? बिकॉज ही इज अ क्रिएटर फाउंडर. राइट, एग्जैक्टली. वो अपनी जर्नी बता रहा है हर तरीके से, तो लोगों को याद रहेगा कि एथफ्लेक्स है तो एंड्रू है, एंड्रू है तो एथफ्लेक्स है, बिकॉज यू आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी. right. Some value that we are putting out. So your take is like it has more become about flexing, but it should be more about educating. Yeah, should be more either relatability or education, दोनों में से कोई एक. A good example of both is Saket. उसके बाद एक वो है अपना सिद्धांत रायसिकन. They are all very good creators. creators. Yeah. Very authentic, very Exactly. genuine, and I Exactly. think they stayed on their path and they have gone a Exactly. longer way. Yeah. And they don't have to sustain. मतलब sustain करने के लिए कुछ image sustain करने के लिए कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं है, वो जो है वो ही है, वही तो. So have you ever felt or tempted to fake a transformation or result just or the result to just grow faster? No. मैंने बोला कि मैं बहुत टाइम से कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है. तो वन थिंग आई रियलाइज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वॉज रिलेटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आज हो क्या रहा है, हर बंदा एस्थेटिक फिजिक वाला इंस्टाग्राम पे आ गया है, बट यू डोंट सी द बैक स्टोरी. अ बेटर थिंग वुड हैव बीन कि अगर वो शुरू से कंटेंट बना रहा होता ना कि देख भाई मैं स्किनी फैट था, या देख मैं मोटा था, या देख मैं एकदम पतला माचिस जैसा था, तब से अगर वो कंटेंट बना रहा होता ना तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल होता और ज़्यादा रिलेटेबल होता. दैट मैटर्स मोर आई थिंक. मुझे अब माई कजिन्स काइंड ऑफ लुक अप टू मी, और वो बोलते हैं कि श्लोक भैया ऐसी बॉडी बना लो, बाद में ही अपलोड करो ना. मैंने कहा पागल है क्या, अभी से कर. कितने सारे 15 साल के लड़के होंगे हु नीड समवन लाइक यू. वो नहीं करते, लेकिन हाँ वो नहीं करते. वो फिर भी वही बोल रहे हैं मेरे को कि मेरे एब्स दिखेंगे ना तब मैं पहली फोटो डाल. वो ये कंपैरिजन वाला सीन है. और कमिंग बैक टू एम्बैरेसमेंट. हाँ, कि जब मैंने फिटनेस कंटेंट डालना शुरू किया ना, इवन इफ यू स्क्रॉल डाउन बहुत नीचे नीचे ना, तो मैंने मेरी स्किनी फैट वाली फोटोज भी डाल के रखी है, और उसके साथ मैंने वो 2 साल का ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी पूरा जर्नी मैंने डाला हुआ है.
सो इट्स वेरी इजी. कि डाला हुआ है क्लियरली कि भाई कहाँ से शुरू किया. इट्स नॉट जस्ट कि सीधा बॉडी बन गया भाई. एग्जैक्टली वही. Who's one fitness creator you respect for keeping it raw? Keeping it raw, a lot of them are there. जैसे मैंने अभी बोला साकेत है एक तो मेन सबका फेवरेट है भाई. काइंड ऑफ वो मुझे रॉ वाला और ऑथेंटिसिटी वाला वहाँ से भी रियलाइजेशन हुआ था कि भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक. उसके बाद भाई सिद्धांत राय सिकन, साकेत वीडियोग्राफर. हैव यू सीन हिम? अवधूत मूल नाम है उसका. वो भी खुद भी कंटेंट बनाता है. खुद कंटेंट बनाता है और बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है. इट इज़ वेरी रिलेटेबल. जो कोई भी 20-21 साल का लड़का होगा ना वो उससे ही रिलेट कर पाएगा. एकदम वैसा कंटेंट है. मुझे वो उतने क्रिएटर्स उतने अच्छे नहीं लगते कि जो आके सिर्फ अपनी कंपटीशन की बात करता है कि ये मेरा ये इतनी लिफ्ट ये वो. नहीं यार, कुछ रियल बताओ कि समवन हु हैज कम फ्रॉम लेवल 0 to 10 राइट नाउ. वो ज़्यादा अच्छा लगता है. So like I would consider like Saket would be your one of the favorite fitness creator at the moment. अभी इस साल का गोल है वो हो जाएगा कि just to have a video with him. A video with him. Yeah, a collaboration. हो जाएगा. Have you ever looked at the industry and thought this is more influencer driven than athlete driven now? हाँ, क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ गया. All thanks to our team. इट इज इन्फ्लुएंसर ड्रिवन एथलीट ड्रिवन. एथलीट्स अब नोटिस करोगे आप. फॉर एग्जांपल अपना एक क्रिएटर है ये नैटी गोकू. क्रेजी एथलीट, क्या फिजिक है. अब मैं उसकी फॉलोइंग देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि ही डिजर्व्स टू बी समवन हु कैन हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और उसके सिर्फ 13-14 के है. जबकि वो उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, जेन्युइन बंदा है, उसकी स्टोरी भी बहुत बढ़िया है. पर पता नहीं क्यों लोगों को क्या चाहिए कि वो ऊपर कुछ कोट लिखा हो कि अरे भाई बंदी छोड़ के चली गई, ये हो गया वो हो गया. नहीं. Absolutely. मतलब it's very influencer driven. Like for example, even brands also look up to नहीं athlete या फिर for example like athlete driven बोल सकते हैं. Like not just this like ICN तो ठीक है, IHFF हो गया या फिर कोई IFBB Pro हो गया या कुछ भी हो. They don't have the opportunities that a basic influencer is having. Exactly. Actual need में अगर देखा तो of course they influencer को भी need है but athlete को उससे ज़्यादा need है. I know. उसका खर्चे ये कितना ज़्यादा है. They need more support in the industry. Bifurcate right now कि आपने अभी प्रेप किया तो महीने का कितना बिहाइंड अ प्रेप गोस, खर्चा कितना होता होगा इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग. सप्लीमेंट, फूड, ट्रेनिंग. आई थिंक मेरा आराम से लाइक 40,000-45,000 तो आराम से. अभी यही खर्चा वो एथलीट भी उठा रहा है. अब उसको ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्लस ये तो मेरे में तो लाइक आई डिड अ नेचुरल शो. देयर वाज नो पेड्स ऑन स्टफ एंड ट्रैक एंड क्या होता है ब्लड टेस्ट ये वो इतनी डॉक्टर सपोर्ट ये सब कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. लेकिन अगर उसमें हो तो और 20-25 हज़ार रुपए ऐड कर दो. मतलब 50-60 हज़ार रुपए तो कहीं के हर महीने सिर्फ बॉडी को देने के लिए. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. बट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ ब्रांड सपोर्टिंग भाई वो. मेरे को लग रहा है कि एंड ऑफ द डे बॉडी बिल्डिंग इज मोर अबाउट शोबाजी. हाँ, मे बी जो दिखता है वो बिकता वाला सिनेरियो. अब मानोगे नहीं, ठीक है. अब आप ICN जीत के आए, वी मेट फ्यू डेज आफ्टर दैट. उसके बाद तो मैं बीच में कन्विंस हो गया था कि अपने नेक्स्ट ईयर खेलते हैं. फिर मैंने सोचा मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को ICN में शायद ना जीत पाऊँ, कुछ भी नहीं होगा. मे बी आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर कंटेंट. तो फिर अब नहीं करना. चलेगा इससे अच्छा. मेरा तो लाइक आई हैड अ व्हाई क्लियर व्हाई वो मेरा व्हाई क्लियर नहीं है. तो फिर मैं नहीं करूंगा. Don't do it on pressure. A lot of people even after I came back to the gym मेरे को भी ऐसे 3-4 लोग, मैं भी ICN कर रहा हूँ, गोवा वाला शो कर रहा हूँ. अरे मतलब बहुत अच्छी बात है. कर भाई. बट वो मेरे को देखा देखी वाला जो था वो मेरे को दिखा. उसके बाद यही लोग हार जाते हैं, बोलते हैं कि अपने तो टाइम पास कर रहे थे. कुछ नहीं था और तो मैं तो ऐसे ही चला गया था. तो मेरे को वो आदमी नहीं बनना है. हाँ या. Coming to the segment 6, which is vision, legacy, and cultural shift. I think we have talked a lot about the whole thing. Beach में bits and pieces, but what do you want people to remember for you? Your physique, your mindset, or your message? My message and mindset. फिजिक तो ठीक है, मैंने कहा ना यार, कोई भी दूसरा आएगा मेरे से बेटर फिजिक लेके, लोग उसको देखने लगेंगे. ये सिर्फ बेटर फिजिक के हिसाब से तो नहीं. मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल यू टॉक्ड अबाउट लिविंग अ लेगेसी फॉर द नेक्स्ट 50 years इफ यू नॉट देयर ऑल्सो. भाई 50 की उम्र में ये बॉडी थोड़ी होने के चक्कर कोई एक्सपेक्ट थोड़ी करेगा. हाँ, वो नहीं होगा. पर ये आई थिंक वो माइंडसेट का बाय प्रोडक्ट है. मेरा फिजिक जो भी होगा उस वक्त
by the time I turn 50. But I want people to remember me for my mindset and how I am able to help them. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. हमारे जिम में एक लेडी आते हैं, वो शायद बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे मुझको. अब उन्होंने मेरे को बोला कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, माई हस्बैंड शोड योर कॉन्टेंट टू मी एंड सिंस दैट डे आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज एवरी डे. और मैं somehow आपके कंटेंट की वजह से मेरा दिमाग इतना अच्छा फील करने लगा दैट आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ इट. ओह, दैट इज अ बिग थिंग. एग्जैक्टली राइट. तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यही तो चाहता हूँ मैं. आई वांट टू हेल्प एवरीवन. देखिए, सिर्फ कोई भी एक बंदे को भी अगर वो इम्पैक्टफुल आता है, बट इट्स लाइक अ क्रेजी कैंसर और ये सब वाला तो वजह से. I saw a lot of people also coming down to you on the Flex Fest. यार Flex Fest में तो आपके पास तो काफी सारे मीटअप के लिए काफी लोग हैं. मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग मेरे को मिलने आएंगे. मेरी तो ऐसे दुखने लगा था. मजा बहुत आ रहा था. हाँ. So 10 years from now, if someone Googles Shlok Soni, what headline do you want to pop up? The man. The man, Yeah. the myth, the legend, Shlok Soni. हाँ, किसी मुझे ऐसा पूरा कंटेंट स्पेस ऐसा बना देना जैसे वॉट एवर लाइफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू ना, इफ़ यू वॉच एनी ऑफ माई वीडियो, वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपकी हेल्प करने में. मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए. और वो उतना अभी साउंड हो रहा है शायद, बट व्हेन आई विजुअलाइज इट, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए. It's a very big thing यार. कि अगर कोई लिखेगा कि सफरिंग थ्रू दिस राइट नाउ व्हाट शुड आई डू, तो तुरंत मेरा एक वीडियो पॉप हो जाना चाहिए कि ये मदद For the mindset. या मेडिकेशन के हिसाब से. मेडिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं. बट फॉर द माइंडसेट कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए फॉर दैट Totally. टाइम बीइंग. टोटली. क्या इस तरीके से टॉक अबाउट, थिंक अबाउट दिस वे. और द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सी राइट नाउ इज के बच्चे एक तो वही हमने पहले भी बात की कि सबके पास फोन है. यस. लॉट ऑफ कंपैरिजंस, वेरी लेस अटेंशन टाइम स्पैन, लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेल्फ एंड देयर पेरेंट्स. तो बहुत गलत राह पकड़ लेते हैं बच्चे. अब उनको अगर मेरे जैसा कोई या मैं अकेला खुद अगर कर पाऊँ तो उनको एक बेटर राह दिखा सकता है, तो आई नॉट. आई थिंक एट दैट एज रात देखना या सही पाथ पे देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, जैसे मुझे पता है कि मेरे जैसे क्रिएटर्स बहुत कम है और मेजोरिटी आर वो शोबाजी वाले ये सारे. तो ये इतनी भीड़ में अगर मैं अकेला इसको बोलूंगा कि भाई तू चिंता मत कर, हो जाएगा तेरे से, देयर इज नो कंपैरिजन, इट्स यू वर्सेस यू, बस गिव अप मत करना. तो आई थिंक if it's helping the person. Great. Do you think Indian fitness is evolving or we still chasing Western validation? Oh, very good question. It is evolving and we are chasing Western validation. Western validation in what sense you are talking? Western validation का मतलब है कि अभी भी जैसे अपने डेविड लेड की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी बॉडी बिल्डर की बात करते हैं, तो we still don't talk about Indian bodybuilders or Indian athletes. Rather we take, for example, जैसे इंडिया में भी काफी सारे IFBB प्रोज है, तो शायद अपने नाम भी नहीं पता होगा अभी. तो अभी जेरेमी बुंडिया का नाम लोगे तो पता है, आप बोल रहे हो डेविड लेड पता है, सीबम पता है. आज भी वो वेस्टर्न वैलिडेशन पे है कि इंडियन फिटनेस इवॉल्व हो रहा है, बट वी स्टिल आर ऑन द वेस्टर्न वैलिडेशन कि सीबम जैसा बनना है. Yeah, actually that is so true. समझ लो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सुहास खामर जैसा बनना है. सुहास खामर शायद आपको मालूम ही नहीं होगा. नहीं पता. वो यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स है. ये लोग सब ने इतना अवार्ड जीता है, ये सब चीजें हैं, बट वी डोंट नो. Exactly. वर्ल्ड स्टेज पे जा रहे हैं. ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में है. So see, this is a moment of realization for me also that it's sad. कहीं ना कहीं शायद मैं भी unknowingly उसी लूप में हूँ. Everybody is in the same loop. That's why everybody is following CBUM. We take examples of CBUM. We don't talk about Indian IFBB pros like Delta Dilip है, राजा अजीत है. ऐसे फीमेल्स में भी बहुत सारे हैं और सबने भी मेहनत करके बनाया, लेकिन we never take them as an inspiration or something. हाँ, जिम के अंदर वाले जहाँ जाता है वहाँ के 10 लोग इंस्पायर होकर कर रहे हैं, वहाँ का हीरो. बट लेकिन on a that stage level पे, larger scale पे नहीं. उसका रीजन क्या हो सकता है शायद? What do you think? I think as Indians have always seen Western validation or Western things as something वो तो that यार to भाई chase. वो कॉलोनाइजेशन करके चले गए साले. वो तो बहुत ऑफ टॉपिक. वो फॉलो कर रहे हैं, वो बाहर नहीं है उससे. इंडियन ब्रांड फॉर एग्जांपल एथफ्लेक्स को फ्लेक्स करना और एक अंडर आर्मर और नाइकी को फ्लेक्स करने में मेजर डिफरेंस आता है. दैट्स हाउ द थिंग. बट आई वुड से इन दैट कैटेगरी थिंग्स आर चेंजिंग. लोग चेंज हो रहे हैं वो चीज में.
फ्लेक्स हो रहा है, देख रहे हैं, देखा देखी है, बट आज भी अगर जाओगे तो कोई भी लग्जरी पे जाते हैं तो आज भी आप गुची अरमानी चीज़ों को ज़्यादा वो रखोगे, इंडियन लग्जरी को थोड़ा पीछे ही रखोगे, इंडियन लग्जरी। आई थिंक ब्रांड वाइज वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ऊपर आ रही है, बिकॉज नोइंगली एंड वेरी कॉन्शियसली आई स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडियन ब्रांड्स नाउ। वो मेरा पार्ट है उसमें कि अपने देश का नाम आगे करते हैं। बट अबाउट बॉडी बिल्डर्स ना, दिस इज वेरी सैड। आई थिंक बॉडी बिल्डर्स में भी है, बॉडी बिल्डर्स में बहुत कम है, क्रिएटर्स में फिर मे बी ये रीजन हो सकता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन इंटरनेशनल स्टेज। आई वुड से फॉर श्योर, लाइक फॉर एग्जांपल माइंडसेट इशू आता है कि अपने से तो वो लेवल पे नहीं होगा, वो एक माइंडसेट स्टैग्नेंसी लाते हैं। और बात सही है, लाइक वी सी पीपल हु आर ऑन द ओलंपिया स्टेज, हु हैव डन ऑन द ओलंपिया स्टेज, बट पीपल फ्रॉम इंडिया हैव स्टिल नॉट reach that level, and I think they will reach for sure. मतलब जिस तरीके से सब चीज़ें जा रही है, and like IHF, शेरू क्लासिक and all this, मनीष गांधी and everybody who are bringing that level of, नहीं मतलब वो लेवल यहाँ पे इंडिया में करने तक ला दिया, प्रो शोज यहाँ पे ला दिए, यहाँ से if they get selected they can fly to Olympia, like to Olympia and be selected there. तो ये सब चीज़ें अब हो रही है। I think we can see this change coming up in the next 3 to 5 years easily, और होगा सही 100% होगा, क्योंकि इंडिया में वो पोटेंशियल है, इंडियन बॉडी बिल्डर्स में भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो ये कर सकते हैं, हद से ज़्यादा है। अपने जो भी देखते हैं अभी मेरे को तो यही, अभी वो नैटी गो की बात की, आई एम सो काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विथ हिज फिजिक राइट नाउ। वो जैसा दिखता है ना, इट इज माइंड ब्लोइंग कि नेचुरली ये अचीव कर सकते हो आप। क्या नेचुरली मतलब वही, या दे टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। अभी मेरे को लग रहा है आईएचएफ, शेरू क्लासिक, ओलंपिया सब कुछ है, बट a new wave of natural competition has started. Totally. वो जैसे दूसरा प्रेम जोशी, he's 19 or 20 years old. क्या अमेजिंग फिजिक है यार उसका, अमेजिंग। तो people have started chasing the natural thing, जो एक्चुअली लोग समझो कंपेयर करके भी मैं बोलूंगा वो अच्छी चीज है। करेक्ट। नेचुरली अचीव कर रहे तो वो एक मोटिवेशन की तरह होता है, कंपैरिजन नहीं, एक मोटिवेशन की, यार अगर ये नेचुरली बना सकता तो मैं भी बना सकता हूँ ना, नेचुरली। हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था ऑन द ग्राम की जो नैटी नहीं है वो भी ये बोलते हैं कि मैं नैटी हूँ। और हाँ, एज अ किड हम लोग बिलीव करते थे कि भाई ऐसी बॉडी तो बन जाएगी। They never told about, like for example, Lazar Angelo, Simeon Panda, Ulysses Ward. Simeon Panda was one of the first influencers on Instagram ना। ये सबको देखते हुए बड़े हुए, मैं तो उन सबको आज भी देखता हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं ये पैंडा है ना वैसी फिजिक बना लूंगा बाय द टाइम आई एम 21। इतना स्टूपिड था मैं, और मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था कि एनाबॉलिक्स जैसी कोई चीज होती है। एब्सोल्युटली नहीं पता था भाई। एक है साइमन स्काइसिंस, पता है? स्काइसिंस, इंडियन लिविंग इन साउथ अफ्रीका। यस। वो नैटी नहीं है मोस्टली तो, लेकिन वो नैटी जैसा लगता है, पता नहीं क्या सीन है उसका। लेकिन हाँ उसका भी एक टाइम पे बहुत क्रेज हो गया था उसका। मुझे लगता था कि यार इसका प्रोग्राम खरीद लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा होता नहीं है भाई। But everybody goes to the hard way of understanding, learning. Yeah, totally, and it is very necessary. Segment 7 है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये segment is called the real talk. ठीक है? What's the best piece of advice you have ever received? In order to become strong, you have to push yourself कि अब मेरे को strong बनना ही पड़ेगा। अब जैसे मेरा वो एक टिपिंग पॉइंट था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि अगर अभी मैं स्ट्रांग नहीं होऊंगा तो लाइफ टाइम मेरे को पापा के साथ दुकान में बैठना पड़ेगा भाई। वो अनएक्सेप्टेबल था। एग्जैक्टली। और वो पॉइंट इज वेरी नेसेसरी इन एवरीवन्स लाइफ। मैंने थोड़े टाइम पहले ही अपने एक वीडियो में बात की थी कि यू विल नोटिस समवन हु हैज़ अ वेरी इजी लाइफ फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, वो बहुत सॉफ्ट होता है वो आदमी, सिल्वर स्पून। दैट पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट, उनको कोई भी बात ना नॉर्मली बॉदर कर जाएगी। बट आई नो फॉर श्योर समवन लाइक मी और यू, मेरे को कुछ बॉदर नहीं करेगा बिकॉज वी हैव बीन इन दैट पिट और हम उससे बाहर निकले हुए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन दैट पोजिशन वेयर यू हैव नो अदर ऑप्शन देन बीइंग स्ट्रांग। यार एक मतलब समझो कि दिस इज अ वेरी रॉ क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, टू बिकम समथिंग, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, मिडिल क्लास फैमिली, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। कल उठ के समझो वाइल
you have like your kids and all, you will be in a better position, of course, earning better from where the family started, सब कुछ अच्छा है. वो पार्ट पे जो अपने बात कर रहे हैं कि सिल्वर स्पून वाला सिनेरियो आता है, तो what will you be doing in that के सिनेरियो? क्या करोगे भाई? क्योंकि सिल्वर स्पून तो होगा ही होगा, और एज अ डैड या फिर एज अ पेरेंट तुमको ऐसा होगा कि आई वांट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू माय किड, तो फिर क्या करोगे? मैं नहीं दूंगा. मैं उसको पता ही नहीं चलने दूंगा कि अपने पास इतनी फैसिलिटीज है. मैंने सोचा है इसके बारे में. सी, अभी की जनरेशन जिसको हम थोड़ा बहुत बैड माउथ करते हैं, अपने लोग जो बच्चों को देखते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, कि दिस इज रॉन्ग पेरेंटिंग और व्हाटएवर, तो मुझे पता है कि मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा. आपको पता है कि आप अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दोगे. मुझे भी पता है कि मैं अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दूँगा. उसको इतनी हार्श ट्रीटमेंट दूंगा ना कि भाई वो हेट नहीं करेंगे भाई. चाहे करता. इसी व्हेन आई टॉक टू माई पेरेंट्स नाउ ना, आई टेल देम कि बहुत अच्छा किया आप मेरे को मारते थे. बहुत अच्छा किया कि मेरी नोटबुक वोटबुक नहीं बनाता था, कुछ नहीं करता था, खुद चेक कर देता था नोटबुक टीचर की साइन करके. तो मार पड़ती थी, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी. राइट नाउ यू लुक एट किड्स, दे टॉक बैक. लड़ते माँ बाप को गाली दे रहे हैं, ये सब देखा हुआ है मैंने. दिस इज सो रॉन्ग यार, मत करो. और वो बड़े होके वो कन्वर्ट ही होगा पूरा, उनके पेरेंट्स के ऊपर ही आता है. तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है. जब तक मेरा बेटा समझदार नहीं हो जाएगा ना, बेटा या बेटी, तब तक उसको पता भी नहीं चलने दूंगा कि भाई अपने पास देख 6 गाड़ियाँ पड़ी है. सब छुपा के रखूंगा. भाई बहुत मुश्किल है, आजकल के बच्चे बहुत चंट होते हैं भाई, ये तो भाई सब पता. अपने नहीं होंगे, मुझे पता है कि. But it's about how you like. I think end of the day, one more thing I see is like how you are is also a reflection of like if you train in front of him, if you are disciplined, you eat the same food, you follow a same regime, you respect your spouse, your parents. They grow by seeing, because तभी वो लोग का बोल के समझ नहीं आता भाई, देख के समझ आता है. तो it's all about your actions. मैं बहुत लोगों को पहले बोलता था वॉच एंड लर्न. Watch and learn is very important. Rather than what I'm saying, you just watch what I'm doing and copy that. और कुछ नहीं. And maybe somehow the hustle I have, maybe it is because I've seen my father struggle a lot. Exactly. But he still doesn't give up. Exactly. तो वो उसकी वजह से शायद देख के मेरे अंदर भी वो आ गया है कि नहीं यार छोड़ना तो नहीं है. हाँ भाई वही सीन है पूरा का पूरा. What's the worst piece of advice you have ever received? Long time back when I started making money. It is very financial related advice. Otherwise गलत एडवाइसेस तो मैं इधर से इधर कर देता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहती है. मुझे जो सुनना है मैं वही सुनूंगा, मुझे जो काम का लगेगा मैं वही सुनूंगा. तो लॉन्ग टाइम बैक, अब जैसे मैं कॉलेज गया नहीं हूँ, बट आई वॉज मेकिंग गुड मनी फ्रॉम द क्लाउड किचन. तो मैंने किसी से पूछा था कि अब मैं इन पैसों का क्या करूँ, बिकॉज गिव मी अ प्लान ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर पाऊँ किसी भी तरीके से, या कहीं पे सेफ स्पेस पे इन्वेस्ट कर पाऊँ. तो दैट पर्सन टोल्ड मी कि भाई सबसे पहले तो कॉलेज खत्म करना. आई कैन रिलेट हियर भाई, मेरा भी सेम, क्योंकि मैंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट करके एस्पेक्ट शुरू किया. तो मेरे दोस्त ही है, मतलब एक मेरी फीमेल दोस्त थी, तो वो उनसे मैं बात कर रहा था, तो ऐसे बात करते, अरे तुझे लगता है हाँ ठीक है तूने बिजनेस कर लिया है, तूने ये ब्रांड बना लिया है, तेरे को लगता नहीं है कि कॉलेज करना, एजुकेशन तेरे को कंप्लीट कर देना चाहिए? भाई ट्रस्ट मी, इतना गुस्सा आया था ना मेरे को, इतना गुस्सा आया ना कि मेरे को ऐसा हो गया कि तू बता तू क्या कर रही है इतना पढ़ाई करके. ऐसा हो गया भाई. See, having a learner's mindset is very important throughout your life, but finishing a degree or getting a degree is not everything. See, I totally understand education is important. डॉक्टर बनना या कुछ करना तो भाई it is very important. हाँ, लॉयर बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर. But if you know your calling, right, then if you feel that it is not gonna make a cup of tea for you, then you can start early. I think the biggest plus point for me was starting early, like starting the brand or getting into the brand or this mindset at 17, 18. So today we are at 27, we are able to sit down and talk about all the experiences that we had and क्या last के 10 साल में क्या किया उसके हिसाब से. So I think the wrong advice would be that getting a degree is very important. That would be the wrong advice. Yeah. क्योंकि अभी जो जनरेशन है पूरा, इवन कंसिडर के चलो एथलेटिक्स आप चला रहे हो, who would you want? Someone who has a degree or someone who's skilled? भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैंने तो आज तक कोई भी कितने लोग को हायर, लाइक वी हैव
hired like hundreds of people, done hiring and firing, a lot of things goes on in the company. मैंने कभी उसके डिग्री या मार्क्स मैंने कभी देखे नहीं आता. I've never seen it. If you are skilled, please come, आ जाओ, join कर लो. Skilled, culturally fit. Yeah. Like cultural fit तो हमारा सबसे first होता है. Cultural fit होना बहुत जरूरी है because एक mindset हो गया या फिर एक culturally सब मिलके कर रहे हैं. एक community अंदर जैसे हम लोग we are building the community called the Flex Tribe, right? That we call them Flex Tribe. तो it's very important कि भाई वो Flex Tribe अंदर हो पहले. Yeah. हम लोग अंदर एक community होगा तब बाहर community बनेगा. Correct. So same thing, तो it's very important for, it's very hard for anybody to sustain भाई. मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग को बहुत choosy होता है. होना पड़ता है. I think being choosy is important. Very choosy with the vibe कि भाई कैसे लोग चाहिए, क्या चाहिए. Skill सीख लेगा, कर लेगा, लेकिन भाई साथ मिलके करेगा कि नहीं, वो important, वो ज़्यादा हो जाता है. And I think in general in life also ना, मैं बहुत picky हूँ. See, because अगर मैं we are connected now very early 1 साल से, तो अगर मेरा मन होता ना, मुझे लगता ना कि यार वाइब नहीं आ रही है एंड्रू भाई के साथ, तो मैं शायद कनेक्ट ही ना करता. भाई वो फीलिंग आ जाती है, पता है कि यार सेम लेवल ऑफ थिंकिंग. एंड आई थिंक आई तो प्रीफर नॉट टू सिट ओनली इफ आई एम नॉट. मैं अकेले रह लूंगा एक टाइम पे, लेकिन मैं गलत या फिर जो सेट नहीं हो रहे उनके बीच में नहीं. सेम. और मुझे वो लोग कभी समझ में भी नहीं है कि पता है जो who go out and party with random people, मुझे कभी समझ नहीं आया वो. पार्टी में भी नहीं हो पाता. लाइक वी गो एंजॉय फॉर एंजॉय, विल कम बैक एंड मेरा सर्कल है, इतना इनफ है. स्मॉल सर्कल, बिग कैश भाई वैसा वाला सीन. Very nice. So coming to the last and final round, which is the rapid fire round. अरे यार, We are almost at the end of the podcast. एंड ऑफ कॉफी विद करण. ये कट कर देना, ये नहीं रखना है अपने को. What's your favorite post-workout snack that you can't live without? वे प्रोटीन. Post-workout snack में वे प्रोटीन. हाँ, वे प्रोटीन और पोहा मिल जाए थोड़ा तो मजा आ जाएगा. ट्रेनर वाला टाइम याद आ रहा है मेरे को. सुबह का पोहा ढूंढने जाते भाई. मैं भी ट्रेनर था तब सोचता था. अरे मेरे को नहीं पता था आप ट्रेनर थे. तो मैं तो ट्रेनर था भाई. क्या बात कर रहे हो? I started as a trainer. Same scenario था भाई. Crazy. It was the same scenario. Wow. कॉलेज छूट गया, क्या करूँ पता नहीं. एक ही चीज आता था कि बॉडी बनाना आता है, चलो ट्रेनर बन जाते हैं. दूसरे लोगों की body बना 3 महीने किया मैंने. I did for 3-4 months. Then Amazing. I transformed into a personal trainer. घर जाके जो पीटी देते हैं वो वाला. सेम वही सीन था. अच्छे जगह पे मिल गए तो क्लाइंट अच्छा हो हर महीने. मेरा सेट था 7:30 बजे, तो उसमें थोड़ा गैप होता था तो मैं लारी पे पोहा खा लेता था. बस सेम. मेरा क्या सुबह जाता था, उसके बाद पोहा मंगा लेते थे हम लोग. पोहा जाके कोई लेके आ गए, खा के आ जाता था. यही तो था. इसीलिए फेवरेट पोस्ट वर्कआउट स्नैक या प्री वर्कआउट स्नैक यही है. मोस्ट अंडररेटेड रिकवरी मेथड पीपल डोंट रिलाई ऑन. स्लीप. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Sleep. Actually sleep. People always focus on everything else but not the basic, which is sleep. बहुत खराब. हाँ. If fitness disappeared from your life tomorrow, what would fill that space? Playing tennis, running. Yeah. Favorite cheat meal that always hits? Which always? Oh यार. Pizzas. Pizza boy. Not a burger boy but a pizza boy. Yeah. What's the most awkward or funny thing that ever happened to you during a workout? अरे एक बार क्या हुआ था, मैं चेस्ट प्रेस मार रहा हूँ तो बीच में एक लड़का आ गया, बीच में मिड सेट. कुछ लोग ना मैं कि एक फोटो. मैं कहा ठीक है. उससे भी फनी चीज़ मैं आपको बताता हूँ. एक वो मिड वर्कआउट नहीं था बस, बट दिस हैपेंड ड्यूरिंग फ्लेक्स फेस्ट. बहुत क्रेजी स्टोरी है. ठीक है, सब बिजी है, सब चल रहा है, बार बार इतना कुछ हो रहा है. मैं गया वॉशरूम, मैं सुसु कर रहा हूँ वहाँ पे खड़ा. ठीक है, अब इतने सारे लोग आ रहे थे, बार बार आके मिल रहे थे, तो वो लड़के को टाइम नहीं मिल रहा होगा आके. हाँ ऑकवर्ड है भाई. ठीक है, तो मैं सुसु कर रहा हूँ, वो आया कि श्लोक सर. मैं कहा हाँ. कि एक फोटो. मैं तो भाई इतना खबर से ना मैं सू करूँ जो तेरे को पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ अभी. तो क्या हाँ एक फोटो. मैं कहा मैं ख़त्म कर लूँ, हाथ धो लूँ, उसके बाद करते हैं. फिर मैंने उसका नाम पूछा. मैं वो तेरे को लाइफ टाइम याद रखूंगा भाई. मैं कि ऐसी जगह मेरे से आके पूछा है ना. ऑकवर्ड, वेरी ऑकवर्ड.
What's the most awkward thing that's ever happened to you while filming a workout video? Nothing, honestly, because the most awkward thing which can happen to someone is, I think, embarrassment. और वो तो चला गया था। embarrassment तो चला ही गया था। चला गया बोला कहीं भी खोल के कुछ भी वर्कआउट कुछ भी जो shoot करना है मेरे को बोलो टी-शर्ट उतार पैंट मैं उतार दूंगा कुछ भी कर लूंगा अब कैमरा के सामने। रिवर फ्रंट पे आप बोलोगे नहीं श्लोक भाई फुल चड्डी में अभी अपने को पोजिंग करना पड़ेगा कर लेते हैं कर लेते हैं, मेरे को भी ऐसा मैं भी कर लूंगा भाई। कोई मेरे को वो चला गया स्टेज पे नंगा गए तो फिर अब तो कहाँ है क्या कैमरा है, इतने सारे लोगों के बीच में नंगा 1000 लोग चले गए। देख रहे हैं क्या कुछ ठीक नहीं है। है कोई awkward moment नहीं है। One last question, if your gym crush came up to you and said let's train together, how would you react? मैं ना बहुत नॉनशैलेंट हूँ, हैं? बहुत ही ज्यादा नॉनशैलेंट हूँ। ऐसे पता है देयर इज दिस न्यू टर्म नॉनशैलेंट। नहीं पता भाई, ये बताओ क्या है? ये इतने सारे जेंजी टर्म्स आते हैं ना तो अपडेटेड रहना इज वेरी नेसेसरी। हाँ सो आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग बट बीइंग नॉनशैलेंट इज जैसे अब आपकी कोई क्रश या कुछ है, शी कम्स अप टू यू यू बी लाइक या हाय हाउ आर यू, हाँ yeah, hi, how नॉट are you? अफेक्टेड एट Not ऑल affected. बाय योर प्रेजेंस। वरना अंदर तो चाहे वो फट गई हो अपनी तो अगर मेरे को आके बोलेगी तो आई वुड एक्ट नॉनशैलेंट। बट इफ यू गो बैक 3 years तो मैं ऐसा होता हाँ हिंदी इंग्लिश यही होता मेरा। पर अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। अब ऐसा हो गया कि let's train together. Not today, but I'll let you know tomorrow. Yeah, I'm at this age now. Same, I don't same, have same, crushes. Yeah, same. there's no crush. Yeah, I think that's a wrap. it's so sad. It's a wrap. क्या Big मजा shout आ out रहा to Slok Soni for being on the podcast. Thank you so much, Slok bhai. Thank you so for taking out time and coming on है। podcast. Anything for you. अब बोलो क्या करना है और Big thing. If you guys don't know, Slok Soni was an Athflex athlete. We do. I'm gonna share some photos over here. कि उनके साथ हमने काफी लंबा टाइम काम किया है, and I think there is a huge chance that you might see Slok Soni again. Hope you enjoyed the podcast. Big shout out to Slok Soni for keeping it real, sharing pure truth and value. If you like this episode, hit that subscribe button, drop a comment, and support the Athflex channel. Lift heavy, flex harder with Athflex. See you in the next one. Andrew Leo signing off.